नमस्कार और सुस्वागतम। मशवरा के इस 52.14 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आलोक। आई एम 24/7 सर्विंग फॉर मनोविकास फैमिली with my sweet daughter and my dedicated wife and one special national awardee. As a rehabilitation specialist for persons with developmental disabilities, intellectual and developmental disabilities, and the founder of Manovikas family, I love and celebrate diversity every moment in my life. I welcome you all here in Good Practice series of Mashwara, and this is our very special episode. You will enjoy a lot of things, lot of new things, and Mashwara is a live consultation during COVID-19 outbreak and seek to improve quality care, inclusive education, and advocacy for persons with intellectual and developmental disabilities. Mashwara has therefore conducting this good practice series and host this good practice series, and we also invite our experts and professionals to join this good practice series. This is by our parents, the sibling, the professionals, schools, NGOs, hospitals, etc. on every Wednesday live consultation. मशवरा कोविड-19 के दौरान एक लाइव परामर्श है जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों की देखभाल, समावेशी शिक्षा और मूलभूत अधिकारों के लिए हिमायत या वकालत के बारे में बातचीत करता है। मशवरा में प्रत्येक बुधवार की लाइव श्रृंखला में माता पिता, भाई बहन, पेशेवर, स्कूल, गैर सरकारी संगठन, अस्पताल आदि से जो उत्तम कार्य की प्रस्तुति है उसे हम आप तक लाते हैं। Today we are talking about the good practice of online training for the parents of children with disabilities. We wish you all very happy Navratri. Today I would like to remind you we have one more day. Today is the Police Smriti Divas, और आज हम इस दिवस पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जो बलिदान होते हैं उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। I welcome all our guests and audience. Let's talk about the good practice of the online training for the parents of children with disability. मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपले स्वागत आहे, खैर मकदम, बड़कम, सत श्री अकाल। हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस सीरीज है उसमें हम आज दिव्यांगजनों के जो माता पिता हैं उनके लिए जो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत अलग अलग माध्यम से करते हैं उसके जो कुछ हमारे पास प्रैक्टिसेस आए हैं उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा और आप सब तक इसको पहुंचाऊंगा। मैं देख रहा हूं कि द कोविड-19 हैज कैप्चर्ड ऑल इनटू अ न्यू रियलिटी। इस लोग कहते हैं न्यू लाइफ, बट ये हमारी रियलिटी है। एंड द वर्क प्लेस आर all the closed and the schools are closed. The social distancing is a new normal kind of norms in the society. And I have observed that many kitchen tables are replaced like a classroom. The kitchen table has become the classroom, and the sudden shift from in person to online learning has not been easy for all persons and children with disabilities. And for those who are having especially the autism spectrum disorder or intellectual disability, or we can say the high support needs, the parents and the special educators, the rehabilitation professionals and the professionals in even in this inclusive schools across the country are working very hard and fast to stay close contact, share information and feedback, and overcome barriers to ensure that children makes progress during what away, or what we can say the what will likely be many weeks and perhaps it has even in a months and away from their schools, services, therapies and counselings. So कोविड-19 ने हम सभी को एक नई वास्तविकता में बदल दिया है, और जैसे हमारा सारा कार्यस्थल या स्कूल बंद है, सामाजिक दूरी है, नई सामान्यता है, और हम देखते हैं कि बहुत सारी जो रसोई की जो मेज है वो वहां पर कक्षाएं भी चलाई जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा से व्यक्ति के लिए जो अचानक बदलाव आया है उसमें
मैं देखता हूँ कि सभी माता पिता या हमारे जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उनके लिए, खास करके जो ऑटिज्म है, जिनको बौद्धिक दिव्यांगता है या जिसकी की जो हाई सपोर्ट नीड है, सीवियरली एंड प्रोफाउंडली डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए काफी सारी परेशानियां खड़ी हो गई है। मैं देखता हूं कि जो निकट संपर्क में रहने वाले लोग हैं, जो जानकारी है या जो प्रतिक्रिया है, उनको भी साझा करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहे हैं जिसको कि हमें फिल्टर करना भी मुश्किल हो रहा है। तो आज हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारी संभावनाएं हैं, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग की संभावनाएं हैं, या जो माता पिता है, या जो पुनर्वास पर शिक्षक जो अपने काम कर रहे हैं, या देश भर में जितने भी समावेशी स्कूल बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ और तेजी से जो काम कर रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव है और कैसे वो काम सुचारू रूप से चल रहा है। सो दिस मशवरा लाइव कंसल्टेशन इज थ्रू जूम एंड फेसबुक लाइव फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, their families, caregivers, professionals during this COVID-19 outbreak। यह मशवरा परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान फेसबुक के माध्यम से लाइव है, और देखते हैं कि इसमें जो हमारे बौद्धिक या विकासात्मक दिव्यांगजन हैं, उनके परिवार हैं, या उनके देखभाल करता है, या जो हमारे पेशेवर हैं, उन सभी के लिए लाइव है। मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है। कृपया हम एक साथ मशवरा में जुड़े रहें। I once again welcome and appreciate our special guest to join this Mashwara Live, and this episode is bringing a very important topic, and this is my pleasure to welcome our speaker, Mr. Abdul Malik. He is a superintendent, Jeevan Vikas Vocational Training Center for Intellectually Disabled, and he may be joining very soon. From Udgir, he is from Latur, Udgir. And then we have the another expert, Mr. Praval Yadav. He is a PhD scholar and a special educator. He is working for the Education Department of South Delhi Municipal Corporation, Delhi. We welcome you, sir, and we welcome you, Abdul ji. We welcome you, Praval ji. This session will be presided by our Gupta sir, and we have the sign language interpretation by Mrs. Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। पुनः स्वागत करते हैं जो हमारे आज के विशेषज्ञ हैं, मिस्टर अब्दुल मलिक एंड प्रवल यादव जी। और राखी रमोला के जो विंडो में आप अगर किन्हीं को भी जरूरत हो सांकेतिक भाषा का, तो वहां पर अनुवाद उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं। आज मैं बात करूंगा गांव। आज हम सभी गांव चलते हैं और देखते हैं कि रूरल एरियाज की जो रियलिटी है, पहले वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। Nearly 70% of country's population lives in rural areas, and we have our expert working in remote area where disability and rehabilitation for marginalized students are challenging, even in the normal course of action. With lots of challenges and barriers during this pandemic COVID-19, still the training and education of children with disabilities has started. And we'll talk to Mr. Raza Patel Abdul Malik ji how the program has been initiated during this situation. और हम देखते हैं कि देश की लगभग 70% आबादी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और हमारे पास दूर दराज के क्षेत्र में काम करने वाले जो आज हमारे पास एक विशेषज्ञ है। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि जो रियली रिमोट एरियाज में जहां पर रियली परेशानी होती है, एक वास्तविक रूप से परेशानी होती है, उस पर हम लोग बातचीत करें। और हम देखते हैं कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं वहां पर जितने भी दिव्यांग छात्र हैं वो एक अगर हाशिए पे हैं, और उनके लिए इवन की जो सामान्य स्थिति में भी जो पुनर्वास का कार्य है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और इवन की कई चुनौती और बाधाओं के दौरान, इस कोविड-19 के दौरान जो महामारी में अभी भी हम देख रहे हैं कि वहां पर प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ है, दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा स्टार्ट हुई है। तो इस स्थिति के दौरान कार्यक्रम कैसे शुरू किया गया, आइए हम श्री राजा पटेल अब्दुल मलिक जी से बात करते हैं कि कैसे आपने चुनौतियों का सामना किया, कैसे आपने उसको आगे बढ़ाया। एक मिनट, इनका अनम्यूट नहीं होगा, इनको अनम्यूट कर लीजिए सर, आप अनम्यूट करें प्लीज, अपनी चुप्पी तोड़े। हाँ जी, yes. जी थैंक यू सर। आपने
हमारी तारीफ की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलोक सर। सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी मशवरा को हम 30 अप्रैल से लगातार सुनते आ रहे हैं। सर, आपने एक नया रूप दिया है ऑनलाइन एजुकेशन को। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हम सब जानते हैं कि सारे देश भर में सारी यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस लर्निंग के नाम से अपना एजुकेशन चलाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भारत में है, जो डिस्टेंस लर्निंग से सारे देश नहीं, सारे विश्व के लोगों को पढ़ाई करा रही है। सर, ये जरूर हमारे लिए नया है, चैलेंजिंग है, और एक डर में, खौफ में सारे लोग थे, खास करके पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्पेशली द IDD, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड एंड डेवलपमेंटल डिसेबल्ड चिल्ड्रन के पेरेंट्स खास करके बहुत ज्यादा डर खौफ में थे, एंजाइटी थी, बेचैनी थी। उससे बढ़कर बात के जीने मरने का खतरा हमेशा लाहक रहता था कि कब क्या होने वाला है मालूम नहीं है। हर रोज नए नए वीडियोस देख रहे थे हम, अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में अंतिम संस्कारों के वीडियोस हम देख रहे थे। जी जी सर, तो सारे इस खौफ के माहौल में मशवरा टीम ने हमें ऑनलाइन प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाना चाहिए उससे हमें परिचित कराया, सारे देश भर को अवगत कराया। हम नहीं जानते थे कल क्या होने वाला है। ऑनलाइन प्रशिक्षण की तो बात दूर है, कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते थे। ऐसे हालात में अच्छे अच्छे सेहतमंद लोग भी परेशान थे। ऐसे जगह पर डिसेबल्ड बच्चों के पेरेंट्स और ज्यादा चिंतित हो गए थे। ऐसे हालात में हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरुआत की और सबसे पहले हमने पेरेंट्स की हिम्मत बांधने का काम किया। आपको अभी आलोक सर ने भी बताया कि हम रिमोट एरिया में काम करते हैं, जहां गरीबी रेखा से नीचे लोग जीते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोग राशन के लिए परेशान थे, रोज करना और खाना। ऐसे लोग हैं तो वो राशन के लिए भी परेशान थे। सरकार अपना राशन दे रही थी लेकिन वो नाकाफी था। तब हमने राशन के बहाने से अपने बच्चों तक अप्रोच हुए और हमने राशन के बहाने से उन्हें हिम्मत बांधने की कोशिश की कि कोविड-19 क्या है, इससे घबराया नहीं जाना चाहिए। हमें WHO कोर्सेस की जानिब से पता चल चुका था, हमें पता हो गया था, RCI ने हमें WHO कोर्सेस करने के लिए बताया था। तब हमने कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। तब हमने उसकी सहायता से मास्क लगाकर दूरी का पालन करते हुए पेरेंट्स के पास अप्रोच हुए। पेरेंट्स को सबसे पहले उनका डर निकाला गया, फिर उन्हें तैयार किया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए और उन्हें समझाया गया कि ऑनलाइन प्रशिक्षण क्या है, इसके किस प्रकार आपको लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहले सावधानियां हमने बताई, फिर हमने उनका ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया। देखिए, ऑनलाइन प्रशिक्षण इतना आसान नहीं था। अभी जब हम इन प्रेजेंस हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं तब हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी होती हैं। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण देना और भी ज्यादा मुश्किल काम हमारे लिए हो रहा था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, चैलेंजेस को फेस करते रहे। इस दौरान हमें अजीबोगरीब अनुभव सामने आए। हाँ, हमने देखा कि जब हम बच्चों के पास अप्रोच हुए, पेरेंट्स के पास जब हम अप्रोच हुए तो कुछ पेरेंट्स ने तो कहा कि हम खुश हो गए कि आप हमारे बच्चे को ले जाने के लिए आ रहे हैं। हम यहाँ लाइफ थ्रेटन में जी रहे हैं और आपने हमारा काम सफल कर दिया और सुलभ कर दिया, हमारे बच्चे को ले जाइए। हम रेसिडेंशियल सेटअप का चलाते हैं, तो पेरेंट्स को लगा कि हम बच्चे को लेने के लिए आए हैं, लेकिन हम बच्चे को नहीं ला सकते थे। आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, मुंबई में जहाँ पर रेसिडेंशियल सेटअप का एक स्कूल है, वहां पर एक बच्चे को कोविड-19 अफेक्टेड पाया गया। सारे बच्चों की जब जांच की गई तो कुल 27 बच्चे कोविड-19 अफेक्टेड हो गए थे और भी ज्यादा लोग इससे डर गए थे। तो हमने देखा कि चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ा, जैसे कि पेरेंट्स के पास ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए स्मार्टफोन नहीं है। अगर स्मार्टफोन है तो पुअर नेटवर्क है। हमने देखा
कि अगर जिसके पास नेटवर्क है उसको वीडियो और मीटिंग एप्स की जानकारी नहीं है, ई कंटेंट्स की कमी है। अभी हम ईयरफोन लगा के बात कर रहे हैं, पेरेंट्स के पास ईयरफोन का कोई कंसेप्ट और उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। और हमने देखा कि इग्नोरेंस ऑफ वीडियोस था। एक तो छोटा स्क्रीन है, अब हम तो इसके आदी हो चुके हैं। अब हम आराम से छोटे स्क्रीन में पढ़ाई कर पा रहे हैं, पढ़ाई दे पा रहे हैं। लेकिन जब नया-नया हमने अप्रैल में, जून में हमने ये शुरुआत की, तो स्मॉल स्क्रीन को समझ ही नहीं पा रहे थे पेरेंट्स। तो ये सारे चैलेंजेस हमने फेस किए। ई कंटेंट्स का हमने व्हाटअप किया, राशन के साथ में हमने ईयरफोन व्हाटअप किया हमारे पेरेंट्स को। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, हमने कोशिश की कि आसपास किसी के पास में स्मार्टफोन होना चाहिए, उनको काउंसलिंग करके हमने स्मार्टफोन उपलब्ध कराया और उनसे रिक्वेस्ट की कि बुआ जी, आप 1 घंटे के लिए आप अपने इस बच्चे को स्मार्टफोन दे दीजिए। उन्होंने इस शर्त पर स्मार्टफोन दिया कि भाई हम हाथ लगाने नहीं देंगे, हम नहीं चाहते कि हमारे फोन को हाथ लगे। हमने वो शर्त मान ली और स्मार्टफोन किसी तरह से उनका लेकर हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण चालू किया। देखिए, अभी अगर हम ओवरकम की अगर बात करें कि ये चैलेंजेस को हमने किस प्रकार ओवरकम किया, तो हमने पहले तो उनकी पेरेंट्स की हिम्मत बढ़ाई है, फिर उन्हें बताया है कि ये सारी दुनिया में चल रहा है, जो कुछ हालात आए हैं हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया में आए हैं। और सरकार इतनी हमारी मदद कर रही है कि हमारे डीडी दूरदर्शन की जानिब से हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए 24 आवर्स चैनल सह्याद्री चैनल में टिली मिली नाम से। आर यू हियरिंग मी? एम आई ऑडिबल, डॉक्टर आलोक? यस 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 प्लीज, थैंक यू जी। सह्याद्री चैनल में टिली मिली नाम का एक स्पेशल चैनल चलाया जा रहा है, जहां पर बच्चों को 1st to 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को तालीम दी जा रही है। ये NCERT की जानिब से चलाया जा रहा है। NCERT की जानिब से दीक्षा ऐप में एक चैनल चलाया जा रहा है, जहां पर बच्चों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। हमने पेरेंट्स को इसकी भी जानकारी दी। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की बात अलग है, लेकिन जो बच्चे मुख बधिर हैं, जो बच्चे ब्लाइंड या लो विजन से हैं, जो बच्चे हाथ पैर से थोड़ा सा माजूर हैं, जिनको हम लोकोमोटर डिसेबल्ड कहते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, CP के बच्चे हैं, इन बच्चों को तो नॉर्मल सिलेबस लागू होता है, नॉर्मल करिकुलम लागू होता है। जी, दीक्षा ऐप के जरिए से NCERT में पढ़ाने के लिए हमने पेरेंट्स को प्रेरित किया है। साथ-साथ हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो काम किया है, वो काम बड़ा सराहनीय होना चाहिए। हमने हमारे बच्चों के लिए एक क्लासरूम में बैठकर एक-एक वीडियो तैयार किया। जैसे मान लो बच्चा हमारे सामने है, हम उसको पढ़ा रहे हैं, हमने उस प्रकार बच्चे को हमने अपनी शूटिंग ली। शूटिंग लेकर हमने उस पेरेंट्स के मोबाइल पर उस वीडियो को सेंड किया। उसके लास्ट में हमने कुछ सवालात किए, फिर हमने उनसे होमवर्क मांगा। तो ये सारी प्रक्रिया के साथ-साथ हमने देखा कि यूट्यूब के अंदर भी कुछ ऐसे वीडियोस हैं, नॉनसेंस एक्टिविटीज के नाम से, फन एक्टिविटीज के नाम से। फिर एक यूट्यूब चैनल है, शायद दिल्ली का ही चैनल है, हम उनसे डायरेक्ट वाकिफ नहीं हैं, लेकिन उनसे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनको हम बार-बार यूज करते हैं हमारे ऑनलाइन। वो भी बार-बार नए-नए वीडियोस डालते हैं। हमने उनका भी वीडियोस इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार अभी तक हमारा ऑनलाइन प्रशिक्षण पिछले जून से जारी है और हम नहीं जानते ये कब तक सिलसिला चलेगा, इस प्रकार ये हमें कब तक ये फेस करना है। अभी तो पता चल रहा है कि धीरे-धीरे इसकी संख्या कम हो रही है अफेक्टेड लोगों की। तो जब तक भी चलेगा तब तक हम रिमोट एरियाज में अपने पेरेंट्स के माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए हम सदैव तैयार हैं। जी, आलोक जी। मैं ग्रेट, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और मैं अगर इस पूरे चीज़ को देखूं तो जो आपने एक अच्छी बात बताई है, जो कोविड-19 के दौरान RCI और WHO की जो पहल थी, वो भी काम आया है। तो हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं, जितने हमारे साथी हैं, मैं सबको ये बताना चाहूँगा
कि जो भी कोर्स हुए हैं या जो भी प्लानिंग्स चली है, जो भी हमारे पास कार्यान्वयन हम लोगों ने किया है या जो लर्निंग किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं होता है। और एक चीज मैंने देखा कि जो आपके प्रेजेंटेशन में, जो आपकी बातचीत में लगा कि आप राशन बांटने के माध्यम से शिक्षा देने के लिए या फिर हम अपने दिव्यांगजनों के हालचाल को लेने के लिए वहां पर पहुंचे, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। क्योंकि उस समय मुझे पता है कि लोग घर से बाहर आसानी से नहीं निकल सकते थे। आप चाहे तो कोई वॉलंटियर है या फिर गवर्नमेंट कोई मुलाजिम है, तभी आप वो बाहर निकल सकते हैं। तो आपने वो जो माध्यम किया है वो भी बहुत ही सराहनीय पहल है। एक चीज और आपने जो कही बात, जो दीक्षा या सह्याद्री टेलीविजन चैनल्स थे, बहुत सारे ऐसे टेलीविजन चैनल्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं एज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एज ए बच्चों के अपने पढ़ाने के लिए। और जो आपने कहा कि हेल्प फॉर डिसेबल्ड नाम की एक यूट्यूब चैनल है, अभिषेक जी वो हमारे अपने मशवरा में आ चुके हैं। तो अभिषेक ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। अतिशेक ने, सॉरी माफ कीजिएगा, तो अतिशेक ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि वो जन जन तक पहुंच रहा है। और हमारे वो यूट्यूब जैसे गुड प्रैक्टिस सीरीज में हमारा यूट्यूबर का एक गुड प्रैक्टिस सीरीज था, उसमें भी उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, कि कोई भी बातचीत हो, कुछ भी आपको करना है, तो आप हमें मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जाना चाहूंगा अपने नेक्स्ट जो हमारे एक्सपर्ट हैं, मिस्टर प्रबल यादव जी, ही इज ए पीएचडी स्कॉलर। मैं देख रहा हूँ कि ये शहर में काम कर रहे हैं। आज बहुत ही एक गांव और एक शहर का तालमेल है हमारे इस प्रेजेंटेशन में। So there is a reality of challenge of selecting the accurate and tailored information for everyone. आपको किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आपको कितने एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ये सभी के लिए चैलेंज होता है। अगर आप इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहेंगे तो आपको अपने हिसाब से आपका इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। इफ यू आर रिसीविंग हंड्रेड्स ऑफ इंफॉर्मेशन every day on the same issues, then the skill need to filter the एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दिन भर में, अगर दिल्ली जैसे शहर में है, तो कम से कम मैं देखता हूं कि 100-50 तो ऐसे इनविटेशन आ जाते हैं कि आज यहाँ पर मीटिंग है, आज यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम है, आज इस टॉपिक पे प्रोग्राम है। तो कभी कभी माँ बाप को भी ये इंफॉर्मेशन फिल्टर करने में बहुत कठिनाई होती है कि कौन सा हम प्रोग्राम में जाएं, कौन सा प्रोग्राम हमारे लायक है। तो जब हम पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है कि एक मिस्टिफाइंग सिचुएशन आ जाता है फॉर द पेरेंट्स दोज हु हैज दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। सो मिस्टर प्रबल, ही इज हेल्पिंग द पेरेंट्स टू यूज accurate information and tailored information according to their needs. So Mr. Praval ji, मैं देख रहा हूँ कि जो what you have observed the parental expectations during this COVID-19 के दौरान जो है माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं वो किस तरह से बदली है, वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं आज प्रोफेशनल से। आपने बहुत ही इस तरह का कार्यक्रम किया है, मैं इसलिए पूछना चाहूंगा कि उनकी अपेक्षाओं के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, उनके एक्सपेक्टेशंस के बारे में थोड़ा बताइए। Thank you, Alok sir. Pranam. And it is really my privilege to be here on this platform. मशवरा आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, और आप तो हमेशा जो भी करते हैं हमेशा उसमें पायनियर होते हैं। वो आपका कहीं ना कहीं टॉर्च बियरर का काम करते हैं आप, निश्चित तौर पर, चाहे वो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो, चाहे स्किल ट्रेनिंग की बात हो, चाहे उनको हायर एजुकेशन की बात हो। आई थिंक इंडिया में आप पहले ऐसे पर्सन हैं। मनोविकास एक ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जो इस एरिया में काम कर रहा है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सर, अगर मैं अपने जो आज का हमारा टॉपिक ऑनलाइन ट्रेनिंग है इसके बारे में बात करें, तो जैसा कि अभी मलिक सर ने बताया कि जैसे ही एक ये पैंडेमिक हमारे लाइफ में आया, तो कहीं ना कहीं हम सब एक तरह से चैलेंज्ड पर्सन हो गए। हम लोग चैलेंज पर्सन के साथ काम करते हैं, बट इस महामारी ने कहीं ना कहीं हम सबको चैलेंज बना दिया। तो जब ऐसी सिचुएशन आई कि जब स्कूल हमारे लॉकडाउन हो गया, स्कूल हमारे बंद हैं, तो हमने ये महसूस किया कि हमारे जो स्पेशल नीड वाले पेरेंट्स थे, चाहे वो हमारे जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के साथ मैं एमसीडी के स्कूल्स के साथ काम करता हूँ, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे और भी पेरेंट्स जो हमारे नेटवर्क में होते हैं, मैं किसी एक एनजीओ के साथ भी जुड़ा हूँ, तो वो पेरेंट्स भी, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सबसे पहले उन पेरेंट्स का यही कंसर्न रहा
कि सर अब हम क्या करेंगे, मतलब हमने इतने साल जो बच्चों के साथ मेहनत की है और जो करंट ट्रेंड्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 महीने लॉकडाउन रहने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने बच्चे के साथ कैसे काम करेंगे। और बहुत अर्ली स्टेज में हमने क्या किया, हमने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया, हमने जो हमारे पास रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल था, जो वीडियोस अवेलेबल थी, या जो हमारे पास वर्कशीट, जो कंटेंट हम लोग यूज करते हैं, हमने वो पेरेंट्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बट जब पेरेंट्स से हमने फीडबैक लेना स्टार्ट किया और जनरली पेरेंट्स ने भी ये बात हमें बोली कि सर ये आप जो वर्कशीट्स वगैरह भेज रहे हैं ये बच्चे के साथ हम कर नहीं पा रहे हैं, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आया। और शायद पेरेंट्स ने कभी उन बच्चों के साथ उतना टाइम स्पेंड किया भी नहीं था, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम उन बच्चों के साथ काम कैसे कराएं। और अगर इसको हम एज ए अपॉर्चुनिटी देखें तो पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं ये जाहिर किया कि अभी हमारे पास टाइम है, हमारा भी काम नहीं है, हम भी घर पे हैं, लॉकडाउन में हैं, तो अगर ऐसी चीजें कुछ टेक्निक्स हमें पता चलें कि जिससे हम इन बच्चों के साथ अपने आप को एंगेज कर पाए, उनके साथ काम करना शुरू कर पाए, तो तब कहीं ना कहीं जाके मुझे ये फील हुआ कि बच्चों की ट्रेनिंग से ज्यादा बच्चों के लिए डायरेक्ट रिसोर्स मटेरियल भेजने से या डायरेक्ट वीडियोस भेजने से ज्यादा कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कि हम पेरेंट्स ट्रेनिंग पे फोकस करें। और कहीं ना कहीं हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में तो ये जाहिर सी बात है कि विदाउट एम्पावरिंग द पेरेंट्स हम अपने डिजायर्स गोल्स पे या बच्चों के साथ जो हम लेवल पे काम करना चाहते हैं वो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। तो ये नीड कहीं ना कहीं इस टाइम पे, इस महामारी के टाइम पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बाहर आई पेरेंट्स के थ्रू भी, और हमने भी जो अपने फीडबैक के अकॉर्डिंग देखा कि सबसे ज्यादा इस टाइम जो जरूरत है वो पेरेंट्स ट्रेनिंग की है। तो सर हमने क्या किया, हमने पेरेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किए पेरेंट ट्रेनिंग के लिए। जैसे सपोज दैट जो बच्चा ऑटिज्म वाले पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे एएसडी वाले बच्चे हैं, उसमें भी हमने बड़ा एज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया हमने सेट कर लिया। एक तरह से कुछ बच्चे जो बहुत अर्ली इंटरवेंशन स्टेज में हैं, जिनका एज 3 ईयर तक का है, 3 to 5 ईयर का है, तो ऐसे पेरेंट्स का हमने 4-5 पेरेंट्स का ग्रुप बनाया। उसके बाद हमने वो बच्चे जो स्कूल रेडीनेस पे जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, या हमारे साथ जो बच्चे स्कूल में ऑलरेडी एनरोल थे, प्राइमरी ग्रेड्स में थे, जिनके साथ हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना था, जिनके साथ हमें लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, बेसिक सोशल स्किल्स, इन सब चीजों पे काम करना था, तो हमने इनके ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। और इसमें हमने काफी 1-2 पेरेंट सपोर्ट ग्रुप हैं, एक ऑटिज्म पेरेंट्स फोरम करके है, और भी पेरेंट सपोर्ट ग्रुप हैं, उनके साथ हमने कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन किया। एंड देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक टॉपिक पे वर्कशीट भेजने से पहले जरूरी है कि हम उन पेरेंट्स को उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, या उनको हम बेसिक जो हमारी टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स हम उन पेरेंट्स तक पहुंचाएं, जिससे कि वो अपने बच्चों के साथ जब काम करें तो इफेक्टिवली डील कर पाए, उनके जो लर्निंग चैलेंजेस हैं उनके साथ साथ जो उनके बिहेवियरल चैलेंजेस हैं वो भी, क्योंकि बच्चा पूरे टाइम घर में था तो काफी बिहेवियरल चैलेंजेस बहुत से आए। पेरेंट्स के मोस्टली जो कंसर्न थे वो यही थे कि सर एकेडमिक का तो चलो हम मैनेज कर लेंगे, बट बच्चा घर में है, वो बिहेवियर इशू ज्यादा शो कर रहा है। तो हमने बहुत ज्यादा ये फोकस किया कि हम पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बिहेवियर मैनेजमेंट की जो उनके बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम ट्रेनिंग दें। तो हमने जब सपोर्ट ग्रुप्स बनाए, पेरेंट्स को हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो उनसे हमने क्वेरीज ले ली कि ठीक है आपके बच्चों के अकॉर्डिंग, सपोज दैट अर्ली इंटरवेंशन वाले ग्रुप का बच्चा है तो वहां पर हमें किन चीजों पे काम करना है। सपोज दैट पेरेंट्स ने कहा कि हमें अर्ली राइटिंग स्किल जो है, प्री राइटिंग स्किल है, उन पे हमें काम करना है। तो पहले हमने एक वर्कशॉप काइंड ऑफ एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हमने एक वर्कशॉप की तरह बिल्कुल प्री राइटिंग स्किल्स को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे जो स्ट्रेटजीज हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उन स्किल्स के साथ, वो सारी चीजों पे हमने फोकस करना स्टार्ट किया। और फिर हम उनको कंटेंट भेजते हैं। एक बार जब पेरेंट्स को अवेयरनेस हो गई कि इनको कैसे कराना है, उनको सारी स्ट्रेटजीज पता चल गई हैं, देन हम वर्कशीट्स वगैरह भेजते हैं और वो कर रहे हैं। एक चीज का हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है इसमें, वो ये है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो वीडियोस वगैरह हैं यूज कर रहे हैं, जैसे अभी तो हमारे इंडिया में भी कुछ चैनल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अभी हेल्प फॉर स्पेशल चैनल है और भी चैनल है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वीडियोस बन रही हैं, बट मोस्टली जो मटेरियल है वो अवेलेबल कम है। तो हम लोग ना बहुत सारी जो बाहर की वीडियोस हैं उनको यूज करते हैं और वो कहीं ना कहीं लिंक नहीं बन पाता। तो हमने ये सबसे पहले कोशिश की कि हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे जो बहुत ही सिंपल हो, जो डिलीवर करना इजी हो, पेरेंट्स को समझना बहुत इजी हो, और उन वर्क्स और जो हमने वीडियोस बनाई, जो हमने ट्रेनिंग सेशंस के छोटे छोटे वीडियोस बनाए, वो अपने टीचर्स के साथ हमने कोशिश की कि हम उसमें केवल हाउस होल्ड जो चीजें हैं उन्हीं का यूज करें।
सपोज दैट मैं ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, हो सकता है वो ब्लॉक बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है, मार्केट भी ओपन नहीं है कि पेरेंट्स मार्केट से लेके आ जाएं, तो हमने ब्लॉक्स की जगह पे हमने ग्लास बिल्डिंग करना पेरेंट्स को सिखाया कि आप ग्लास को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सॉर्टिंग कर रहे हैं तो हम फ्लैश कार्ड की जगह फ्लैश कार्ड जितना पॉसिबल है घर में हम वो कर सकते हैं, नहीं तो हम रियल जो हमारे चीजें हैं घर में यूज हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी आप सॉर्टिंग कराइए। कलर कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं, तो हम बच्चों को जो हमारे घर में कलर के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, चाहे वो क्लोथ्स के कलर्स के साथ, चाहे वो फ्लावर्स के कलर के साथ, तो हमने कोशिश की कि जितना ज्यादा रियलिस्टिक ट्रेनिंग को रखा जाए, जितना ज्यादा सिंपल रखा जाए, जो पेरेंट्स उससे कनेक्ट भी कर पाए और अपने बच्चे को वहां पे वो ट्रेनिंग में मदद कर पाए। तो कहीं ना कहीं इसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिला, काफी पेरेंट्स उसको हमें पॉजिटिवली, उन्होंने अपने बच्चों की वीडियोस शेयर करना स्टार्ट किया कि पहले ये सपोज बच्चा ब्लॉक ग्लास को बिल्ड नहीं कर पा रहा था, देखो सर अब 2 सेशन के बाद इसने बिल्ड करना शुरू कर दिया है। या पहले वो बच्चा जग से ग्लास में हमें वाटर को पोर करना है, तो ये फाइन वाटर की एक्टिविटीज है, हमें जनरली हम बहुत सारी जरूरी नहीं है कि ओटी की एक्टिविटीज चाहिए, अगर बच्चा अपने ग्लास में पानी डाल रहा है जग से, तो यही एक बहुत अच्छी स्किल है वो आई एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, चाहे वो फाइन मोटर के लिए, चाहे वो मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इस टाइप की एक्टिविटीज हमने प्लान किया और उसके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और धीरे धीरे फिर हमने उसको स्किल ओरिएंटेड रखा, जैसे हमने बाद में उसको रीडिंग की ट्रेनिंग के लिया, तो वहां पर हमने केवल रीडिंग से रिलेटेड पेरेंट्स को ट्रेन किया कि आप रीडिंग कैसे बच्चों की इंप्रूव कर सकते हैं। रीडिंग में भी हमने डिवाइड कर दिया कि आप फोनोलॉजिकल अप्रोच अगर यूज कर रहे हैं तो फोनेटिक्स के थ्रू आप रीडिंग कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं। या सपोज जो बच्चा हमारा इसका एज ग्रुप ज्यादा है, उसको हमें साइट वर्ड्स पे लेके आना है, फंक्शनल एकेडमिक्स सिखाना है, तो फंक्शनल रीडिंग को हम कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इन चीजों पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया और उसके काफी अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले सर। गुड, वेरी गुड। मैं सुन रहा था और आप सुनते सुनते मैं इतने अच्छे से आपकी बात को मैंने वो किया कि जो आपने बात कही कि इंफॉर्मेशन को जो हम अलग करेंगे, किसी भी पेरेंट्स को अगर हमें बताना है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को शॉर्ट आउट करें, तो उसका जो पहला तरीका है कि जो हमारी नीड्स है, अगर हमारा अर्ली इंटरवेंशन हमारी नीड्स है या स्कूल एजुकेशन नीड्स है या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग हमारी नीड्स है, तो उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जिनको पता ही नहीं चलता, सपोज उनका बेटा किसी वोकेशनल ट्रेनिंग में काम कर रहा था पहले, तो और अब उनके पास क्या हो रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड भी मैसेज आ रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कुछ और चीज के मैसेज आ रहे हैं, जैसे पढ़ने लिखने के मैसेज आ रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज के मैसेज आ रहे हैं। हो सकता है कि ये सारे मैसेजेस उनके लिए काम हो, ये सारा ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो, लेकिन उनकी जो नीड है कि हमारे बच्चे को स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई मटेरियल मिले तो हम वो चीज पढ़ा पाएं, उस तरह की ट्रेनिंग दे पाएं। तो इस तरह से बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं। मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, विनय भाटिया जी का एक सवाल है। विनय जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। यस जी, आपने जो लिखा है आप हमें नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मेरा बेटा जो है वो पिछले 6-7 सालों से वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहा है ज्वेलरी की अमर ज्योति में। लेकिन 6-7 महीने से ये लॉकडाउन की वजह से उसकी ज्वेलरी मेकिंग तो छूट ही गई और गेम्स वगैरह भी छूट गए। तो वो इस समय इतना परेशान है कि क्योंकि सारी जितनी एजुकेशन वगैरह होती है पढ़ाई की उसमें होती है, लेकिन वो एकेडमिक तो उसकी कोई ऐसी एजुकेशन हो नहीं सकती, ना ही वो कर पाता है। उसको तो इतना मतलब ज्ञान हो गया हर चीज का, काउंटिंग वगैरह जो कि बेसिक नीड्स होती है, अल्फाबेटिकल हो गए, पहचान हो गई और काउंटिंग वगैरह हो गई, इस चीज की बहुत काफी अच्छी पहचान है। लेकिन उसके अलावा जब तक वो वोकेशनल ट्रेनिंग तो उसकी खत्म ही हो गई, अब वो बेचारा सोचता है कि मैं करूँ क्या, क्या करूं, कैसे करूं। तो उसके बारे में कोई ऐसा हमें कोई क्लू नहीं मिलता कि भाई ऑनलाइन कोई या वो कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस बारे में बड़ी समस्या है सर, समझ नहीं आता कि क्या करें। ठीक है, मैं आपको सलाह दूंगा कि मशवरा में ही हम लोग कई बार स्किल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, कि जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक जो स्किल डेवलपमेंट का एक बैच शुरू से कोविड-19 से पहले से चलता आ रहा था, और अब कोविड-19 के दौरान वो पूरी तरह से वो बैच वर्चुअल हो चुका है और ऑनलाइन बच्चे पूरी तरह से सीख।
तो एक तो सबसे पहले आप तो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कहूंगा कि आप अभी 6 महीने चूक गए, 6 महीने चूक गए तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो इसलिए आप जरूर ऐसे संस्थानों से बातचीत कीजिए जहां पर ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो रही हो। और जहां तक सवाल है कि अभी हम कोई भी स्किल अगर बच्चे को दे रहे हैं, अगर आप ज्वेलरी मेकिंग का काम उसको सिखा रहे हैं, तो उसका पर्पस होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि उससे करने के बाद जो स्टूडेंट है वो कहीं नौकरी में जाए और उससे कुछ अर्निंग करना स्टार्ट करे। तो अगर वो कैसे पता चलेगा सर कि हम वो क्या कर सकता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस फील्ड पता कैसे नहीं चलेगा? हम तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से पता चलेगा। अगर आपको खुद पता चल सकता है, अगर आपको नहीं पता चल सकता तो आप उसको, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं बच्चे को। और जो स्किल डेवलपमेंट का कंपोनेंट्स है उसमें एक कंपोनेंट्स है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का। जैसे आपके बच्चे का नॉन वर्बल अगर वो बच्चा है तो उसको सॉफ्ट स्किल सिखाया जाता है कि वो जेस्चरल कम्युनिकेशन कैसे कर सके। दूसरी बात है कि वो कैसे अगर मान लीजिए बैक एंड में काम करेगा या फ्रंट एंड में काम करेगा किसी भी सेटअप में, तो उसके बारे में उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ज्वेलरी मेकिंग के साथ साथ अगर उसको इस तरह की भी ट्रेनिंग मिली होती तो वो 6-7 साल के बाद अभी तो कहीं ना कहीं नौकरी करता। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिली है तो मैं फॉरगेट अबाउट द कोविड, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए गार्डियन, बीइंग ए केयर गिवर ऑफ द चाइल्ड, we have to be active, we have to be very purposeful, we have to be very objectively think about कि हमारा जो बच्चा है वो नौकरी कब करेगा, हमारा बच्चा काम करने कब जाएगा, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो, चाहे हाई सपोर्ट नीड का भी बच्चा क्यों नहीं हो। लेकिन हम क्या होता है कि हमारा जो ज्यादा इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं या जो ज्यादा हम कंसंट्रेट करते हैं वो इस पे करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो बोलना शुरू हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए। तो कहीं ना कहीं माता पिता को जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको फिल्टर करना है बड़े प्रिसाइजली। उस इंफॉर्मेशन को कैसे फिल्टर करना है कि हमें एज अप्रोप्रिएट, जैसे प्रबल ने बताया कि एज अप्रोप्रिएटली हमें देखना है कि क्या उसको किस चीज की नीड है, किस ट्रेनिंग की नीड है। इस तरह से ही अगर हम एज अप्रोप्रिएट देखें तो अगर आपका बच्चा एडल्ट है, आपका बच्चा जॉब के लायक है, तो हमें उसको उस तरह का काम करना होगा। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा विनय जी कि आप जल्दी से जल्दी, इवन कि ऑनलाइन भी होता है, आप जल्दी से जल्दी किसी ऐसे संस्थान से बातचीत कीजिए, किसी ऐसे प्रोफेशनल से बातचीत कीजिए जो कि उस बच्चे का प्रॉपर स्किल असेसमेंट करे और स्किल असेसमेंट करके एम्प्लॉयबल स्किल के बारे में बातचीत करे। और पता नहीं, मुझे अमरज्योति के बारे में नहीं पता है कि उनका ऑनलाइन सेशन स्किल डेवलपमेंट वाले के लिए है या नहीं है, आप वहां से भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है सर? नहीं, वहां तो नहीं, अभी और कोई संस्थान हो तो आप बता सकते हैं मुझे। मनोविकास में बातचीत कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू विष्णु प्रिया जी, आप कलकत्ता से हैं, मनोविकास केंद्र से। अगर आपको कुछ बोलना है तो यू कैन स्पीक। मैं एक बातचीत करना चाहूंगा वर्षा चौहान जी से। वर्षा चौहान जी, आप अपने को अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आप क्या कहना चाह रही हैं, बोलिए। हेलो सर। हेलो हेलो, जी जी, बोलिए बोलिए वर्षा जी। हाँ सर, नमस्ते। मैं सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ सर। जी जी, बताइए। मेरा बच्चा अभी 13 साल का है। जी, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है सर। बहुत सारी दिक्कतें आई इस कोविड-19 में, और हमने उसको रोजाना नए नए एक्टिविटी घर पे कराई, घर के पूरे काम सिखाए सर। वैसे तो वो एक्टिव है, लेकिन रोजाना के सर रूटीन उसका सब चेंज हो गया था। लेकिन उसके टाइम से सब हिसाब से सब किया सर। उसके पापा ने उसको बहुत सारा सपोर्ट किया। गुड गुड गुड। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है कि वर्षा जी ने कैसे अपने बच्चे को कोविड में कहानी, मतलब पूरी की पूरी ट्रेनिंग व्यवस्था दी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमें सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना है। कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे पास, कौन सा हमारे लायक है, उसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इफ यू गो थ्रू द मार्केट, अगर हम कोविड-19 के नाम पे ही सब प्रोडक्ट बदल चुके हैं,
अब आप पहले जो प्रोडक्ट इम्यूनिटी के नाम से नहीं बिकता था, इवन कि टूथपेस्ट भी अब इम्यूनिटी के नाम से बिकना शुरू हो गया, ब्रश भी इम्यूनिटी के नाम से बिकना शुरू हो गया। तो क्या होता है कि जब हम इवॉल्व होता है हमारा पूरा परिवेश, तो मार्केटिंग बदल जाती है, इंफॉर्मेशन बदल जाते हैं, लेकिन हमारी जरूरत तो सेम ही रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो हमें एक एज ए गुड पेरेंट, एज ए गुड प्रोफेशनल, वी हैव टू गो फॉर ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और उसके बाद हमें उसको यूज करना है। तो मैं जब अब्दुल मलिक जी से बात कर रहा था इस प्रोग्राम के बारे में, तो मुझे बहुत सारी कहानी पता चली कि उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए हैं। तो मैं अब्दुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो बदलाव लाए हैं वो कैसे कैसे बदलाव लाए, क्या क्या नया चीज आपने सुना है? कोई अगर कहानी हो आपके पास तो आप बताइए प्लीज। हाँ जी सर, कहानियां तो बहुत सारी हैं, अनुभव तो बहुत सारे आए सर। ऑनलाइन प्रशिक्षण ये अभी किसी के लिए नई चीज नहीं रही सर। रात में जिसने भी कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा अमिताभ जी का, तो उसमें एक टीचर आई हैं रायबरेली से, फरहत नाज नाम की टीचर हैं। वो भी ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रही हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो भी उन्होंने सारी दुनिया को समझाया है सर। इससे बढ़कर मेरे पास ऑनलाइन प्रशिक्षण की एक मिसाल है। हमारा इस साल का नीट का रिजल्ट, NEET नीट का रिजल्ट हम देखें सर तो पता चलेगा कि इस दौरान सारा लॉकडाउन पीरियड था। इस दौरान बच्चों को जो ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस मिलनी थी वो सारी की सारी ऑनलाइन ही पॉसिबल थी। तब ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर ही बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है इस साल हमारे देश में कि ये आज तक ऐसे नहीं हो पाया था। आपने सुना होगा एक लड़का है उड़ीसा का जिसने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स नीट में लिए हैं। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण की सच्चाई को अब नकारा नहीं जा सकता सर। अगर हम पर्सपेक्टिव में बात करें हमारे आईडी बच्चों के, तो सर मेरे पास एक 18 साल का बच्चा है विनोद नाम का, जिसके घर में कैटरिंग का बिजनेस चलाते हैं। वो मेस चलाते हैं, लोगों को डब्बा बनाकर देने का मेस चलाते हैं सर। हमने वो बच्चा पिछले 1 साल से हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहा था। हम उसको कैटरिंग की उसको हम ट्रेनिंग दे रहे थे, सब्जी की तरकारी कट करना है, लाइफ स्किल्स और सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं और इंडिपेंडेंट स्किल्स हैं, हम उसको पढ़ाई कर रहे थे। वो बहुत बड़ी अच्छी तरह से सीख भी रहा था। लेकिन अचानक 22 मार्च को स्कूल्स बंद हो गए। तब हमारे पास कोई पर्याय नहीं रहा, हमने उसको अप्रोच करके हमने उससे ऑनलाइन पढ़ाई उससे शुरू करा दी। शुरू में तो दिक्कत जरूर आई उसको समझने में वगैरह, लेकिन आज उस बच्चे के ये हाल है कि वो बच्चा हर 2 रोज में 4 रोज में एक नया वीडियो बनाकर हमको डालता है कि सर देखिए मैं आज ये काम कर रहा हूँ, देखिए सर मैं आज ये काम कर रहा हूँ। तो हमने देखा पेरेंट्स का इसमें बहुत ज्यादा सहकार्य। वैसे भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के एजुकेशन के लिए पेरेंट्स का सहभाग बहुत जरूरी होता है। तो पेरेंट्स जहां पर सपोर्टिव हैं वहां पर बच्चे बड़ा अच्छा सीख रहे हैं। जैसे कि आलोक जी आपने अपने अपने आज के 52 नंबर के मशवरा में आपने भी बताया है कि नाउ द किचन टेबल्स आर क्लासरूम्स। तो ये बिल्कुल पूरी सच्चाई है कि आज किचन टेबल्स हमारे क्लासरूम्स हो गए हैं। अगर आप परमिशन दें तो मैं शायद शेयर कर पाऊंगा। मैं अभी मोबाइल से बात कर रहा हूं और मेरा लैपटॉप में वो वीडियोस और पिक्चर्स हैं। शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो सर अभी, लेकिन ये मेरा एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। हम बच्चे को वीडियोस बनाकर डालते हैं। अभी हम फिजिकल प्रॉम्प्ट हमने हमारे पढ़ाई के दौरान सीखा है कि आपको वर्बल प्रॉम्प्ट देना होता है, मॉडलिंग से सिखाया जाना होता है, फिजिकल प्रॉम्प्ट से सिखाया जाना होता है। तो फिजिकल प्रॉम्प्ट का ये जो ऑप्शन है ये अभी हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। हम तो सिर्फ मॉडलिंग और वर्बल प्रॉम्प्ट के जरिए से ही वीडियो के माध्यम से बच्चे तक पहुंच रहे हैं। फिजिकल प्रॉम्प्ट पेरेंट्स करा रहे हैं और अच्छी खासी उपलब्धि हमें इसके अंदर मिली है। विनोद नाम का बच्चा है, ये बच्चा बहुत ही अच्छे आज सब्जी तरकारी कट करता है। अपने सारे घर के काम, अपने कपड़े इस्त्री करने का काम हो, कपड़े धोने का काम हो, अपने आप को स्वच्छ रखने का सारे स्किल्स हो, ये सारे काम अच्छे कर रहा है। और घर में पूरे घर में उसके एक ही मोबाइल है और उस मोबाइल पर उस बच्चे का कब्जा हो गया है। वो कहता है कि पता नहीं कब मेरे टीचर का फोन आ जाएगा और मुझे कब ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगी। तो वो सारा फोन वो अकेला ही संभाल रहा है। तो आलोक जी ये
ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी, यूं मान लीजिए कि मेरी सक्सेस स्टोरी है, जिस पर हम कामयाब हुए हैं और काम अभी कर रहे हैं। आलोक जी, अगर आप इजाजत दें तो मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं जो बताइए प्लीज, जो पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पिंग है, उनका बच्चा सीखने के लिए, ऑनलाइन सीखने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। ये बड़े अच्छे टिप्स हैं। अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो मैं इसको लिस्ट आउट करना चाहूंगा सर। पेरेंट्स के लिए चाहिए कि हर रोज एक अपना स्केड्यूल हो, एक टाइम टेबल फिक्स हो। जैसा बच्चा हमारा इन प्रेजेंस पढ़ाई करता था हमारे स्कूल में आकर, तब हम सवेरे 8 बजे उसको उठा देते, 9 बजे तक हम उसको तैयार कर देते और स्कूल बस का इंतजार करते। इसी तरह ऑनलाइन प्रशिक्षण में भी हमारा अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल से और स्केड्यूल से बच्चा पढ़ेगा तो वो रूटीन, क्यों तो वो जितने बार हम रूटीन सिखाते हैं बच्चा सीखने में आसानी होती है। तो सर एक स्केड्यूल होना चाहिए। उसके बाद में एक्सप्लेन व्हाट ऑनलाइन लेसन्स आर, ये ऑनलाइन लेसन्स क्या हैं, बच्चे को बार बार समझाना जरूरी है। ये पेरेंट्स समझाएंगे, हम तो वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि अभी कल आज हमने क्या पढ़ा है, कल क्या आपके सामने आने वाला है। इसके साथ साथ चेक मटेरियल्स रेडी फॉर लेसन्स, मटेरियल्स को चेक कर लेना चाहिए कि अभी ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू होने वाला है तो सारे मटेरियल्स उसके टेबल पर अवेलेबल हैं कि नहीं है। गेट रेडी डियर किड्स, यानी उसके कपड़े सही ढंग से उसने पहने हैं कि नहीं पहने हैं, और टॉयलेट वगैरह से वो फारिग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी पेरेंट्स को चेक कर लेना जरूरी है। और जब वो पढ़ाई कर रहा है, कीप एन आई ऑन देम ड्यूरिंग लेसन, यानी पढ़ाई के दौरान उस बच्चे पर नजर रखनी जरूरी है। क्यों तो हम अच्छे लोग भी हम देखते हैं कि कहीं वेबिनार है तो अटेंड करने के लिए हम ऑनलाइन तो चले जाते हैं और अपना वीडियो और ऑडियो ऑफ करके, म्यूट करके हम किसी और काम में लग जाते हैं। तो हमारे बच्चे पर ध्यान देना होता है कि कहीं हमारा बच्चा इस प्रकार तो नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज है, छठी जो चीज है, हर रोज उसको पूछना जरूरी है कि भाई आज आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, हमको भी पढ़ाइए, आप समझाइए हमें भी कि आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है। और एक चीज है कि भाई आपने आज जो कुछ सीखा जरा हमें भी तो सिखाइए। समझिए हमने उसको मैच बॉक्स सिलगाना आज सिखाया था, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बताओ बेटा हमें भी सिखाओ कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड में क्या लेना है, राइट हैंड में क्या लेना है, किस प्रकार कितना फोर्स लगाना है। ये चीज पेरेंट्स ने भी जानते हुए भी बच्चे को पूछना चाहिए, बच्चा उसको खुशी खुशी होगा। फिर हर रोज जो पेरेंट टीचर्स हम उसको होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क उसने पेरेंट्स ने चेक करते रहना चाहिए। और आखिरी चीज है जो पेरेंट्स को करना है, अच्छा काम करने पर अपने बच्चे को प्रेज करें, उसको शाबाशी दें, लालच नहीं देना है। शाबाशी में लालच नहीं आती है, लालच की आदत हो जाएगी। साथ साथ जो आखिरी चीज है, फन में भी हमें उस बच्चे को डालना है, फन एक्टिविटीज में भी वो बच्चे को हमें मौका देना है। तो इसके लिए फन एक्टिविटीज के लिए मैंने आपको बताया था, नॉनसेंस एक्टिविटीज हम सर्च कर सकते हैं, फन एक्टिविटीज हम सर्च कर सकते हैं, उसमें भी बच्चे को समय तो वो मोबाइल से और ऑनलाइन प्रशिक्षण से उसका लगाव रहेगा। तो ये कुछ टिप्स थे मेरे पेरेंट्स के लिए। अगर टाइम परमिट करता है तो मैं स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ टिप्स बनाए हैं। प्लीज। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो चाहिए कि वक्त से पहले तैयार होकर बैठ जाए। मान लीजिए हर रोज, अभी हम मशवरा से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं कि आज 52वां एपिसोड है, लेकिन उसकी टाइमिंग कभी चेंज नहीं हुई। हर बुधवार को और शनिवार को 3 बजे। तो हम इस प्रकार हम पहले तैयार होते थे कौन बनेगा करोड़पति के लिए, 9 बज गए क्या, आप सबको याद होगा। इसी तरह मशवरा वालों ने हमें ये सिखाया है कि टाइम फिक्स होना चाहिए, चाहे कितना भी वीआईपी गेस्ट आए उसके लिए टाइम फिक्स है, ऑडियंस के लिए और दर्शकों के लिए भी टाइम फिक्स है। तो बच्चे को ये आदत हो जाना चाहिए कि 10 बजे मेरे टीचर्स ऑनलाइन आने वाले हैं, तो या ऑनलाइन वीडियो आने वाला है, तो बच्चा 10 बजे से पहले तैयार हो जाए। उसके बाद में कंफर्टेबल चेयर पर और आई लेवल पर अपना स्क्रीन लगाकर वो कंफर्टेबल चेयर पर बैठ जाना चाहिए 10 मिनट पहले। कैमरा हमेशा ऑन रखना चाहिए। कैमरा ऑन रखने का फायदा ये होता है कि टीचर उसको देखते रहता है कि कितनी दिलचस्पी से वो बच्चा पढ़ रहा है। तो
जो बच्चे को चाहिए कि वो अपना कैमरा ऑन रखे। यहाँ पर बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। हम आज पेरेंट्स के लिए ज्यादा बात कर रहे हैं। तो और अब बच्चे को चाहिए, अगर समझदार बच्चा है तो जरूर बोलेगा अपने पेरेंट्स को कि माय टीचर इज कमिंग, अभी 10 बजे मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मुझे फोन नहीं करेगा। अगर ट्रेनिंग के दौरान फोन आ जाता है तो डिस्कनेक्ट होने के चांसेस होते हैं। और बच्चे को चाहिए कि वो हमेशा अलर्ट रहे। 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, तो पूरी क्लास अलर्ट रहे। कभी भी टीचर अपना सवाल कर सकता है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प्स योर लर्निंग प्रोसेस। अगर बच्चा एक्टिवली ये पार्टिसिपेट होकर सुन रहा है पूरी क्लास, तो उसको जरूर फायदा होगा, वो कल का इंतजार करेगा। जी आलोक जी, ये ग्रेट, तो मैंने जो है अच्छे टिप्स स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। आपने जो एक बात कही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लर्निंग विद फन। अगर फन नहीं है तो वो काम ऐसे ही टेंसफुल हो जाएगा। आप ऐसे कोविड में तो देखते हैं कि हर जगह मेंटल हेल्थ की समस्याएं बढ़ रही है, और हम अपने बच्चे को अगर रिलैक्स रखना चाहते हैं तो हमें उनके लिए हर चीज में फन एक्टिविटी जोड़ना होगा। देखना होगा कि आपने मशवरा के साथ हम लोगों ने फन एक्टिविटी के लिए मन भावन को जोड़ा है कि मन भावन से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खुश होंगे, उनको एक एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा और वो उनके लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो आने वाला अगला मशवरा मन भावन है ऑन 23 अक्टूबर को, फ्राइडे को, वो नवरात्रि के अवसर पे है। तो मन भावन invites all the children, adults, boys and girls with disability, especially those with the intellectual and developmental disability, autism spectrum disorder, learning disability, high support need, ADHD, to join the Garba special Man Bhavan. We are doing the Garba, और हम आपको चाहेंगे कि जो हमारी एक्टिविटीज है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यू विल फील कि हमने ऑफलाइन में भी ऑफलाइन गरबा, मतलब अगर हम फेस टू फेस गरबा अगर करते तो उतना ही इंजॉयमेंट किया है कि अगर हमने ऑनलाइन गरबा किया है मनोविकास मन भावन के साथ। तो आप प्लीज जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो भी लड़के लड़कियां, यंग बॉयज गर्ल्स, मदर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो आप सभी जो है कि घर में उस दिन गरबा की तरह माहौल बनाइएगा और बड़े अच्छे से ड्रेस पहनिएगा और फिर मन भावन में गरबा एक्टिविटी कीजिएगा। तो वो क्या होगा कि आपको एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का एहसास दिलाएगा। और मैं आगे बढ़ने से पहले ज्योति मालेवाल जी हैं, मैं उनसे, उनका हैंड रेज है तो मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। क्या आप क्या सवाल है आपका ज्योति जी? आप अनम्यूट करिए माइक। हेलो जी। हाँ जी सर, मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे। प्लीज। क्योंकि किंशुक है वो मेरा बेटा ऑटिस्टिक है और वो भाषा बिल्कुल नहीं समझता है, सिर्फ एक्शन समझता है। वो तो सब चीज समझता है, मैं तो देखता हूँ उसको मन भावन में, आप अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। हाँ जी, एक्शंस वो बहुत अच्छे से समझता है और काफी चीजें जो नहीं करता था वो भी लॉकडाउन के अंदर वो करने लग गया। जी। क्योंकि हम जो काम करते थे वो उसको रिपीट करना पसंद करता था। तो मैं अपने साथ साथ जितने जैसे किचन के काम करती थी या ये जो काम करते थे वो भी मेरे हस्बैंड, वो भी अगर ये आ रहा है तो हम इससे करवाते थे और ये बड़े शौक से करने लग गया। और इस तरह से इसने बहुत सारी चीजें सीख ली जो ये जब स्कूल जाता था तब नहीं सीख पा रहा था। यहाँ तक कि अब ये किचन में मेरे साथ चाय बना लेता है पूरी अपने आप, वो भी मुझे इसको डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती। और ये सिर्फ 8 साल का है और मतलब बिल्कुल भी भाषा नहीं समझता। देख देख के अब ये सारी चीजें, भाई मम्मा क्या कर रही है वो मुझे करना है, लैट्रिन बाथरूम जाना अपने आप, ये सब ये कर लेता है। जो कि मतलब पहले हमें लग रहा था कि हम शायद सिखा ही नहीं पाएंगे इसको। और मतलब शौक में, खेल में ये सब चीजें इसने सीख ली। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा बच्चों को समझना पड़ेगा कि वो क्या चाह रहे हैं। और थोड़ा सा इन बच्चों को होता है कि एक ही रूटीन बहुत ज्यादा पसंद होता है, एक जैसा रूटीन। जरा सा भी चेंज करें हम तो इन्हें दिक्कत होने लगती है, इरिटेट होने लगता है किंशुक और चिल्लाने लगता है बहुत ज्यादा। तो वो चीजें भी हमने थोड़ा इसको आदत डाली कि चेंज होंगे थोड़े बहुत, वो तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अब बहुत सारी चीजें हैं कि ये एक्सेप्ट करता है और उनके अकॉर्डिंग करता है। तो मुझे लगता है एकदम भी बच्चे को एकदम स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि तुम्हें इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा।
वो भी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। थोड़ा घर में गेस्ट आ जाते हैं या कुछ आ जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत देने लग जाते हैं ये बच्चे, क्योंकि उन्हें चेंज बिल्कुल नहीं पसंद है। तो थोड़ा सा चेंज की भी आदत डालनी बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुड, आपने बहुत ही अच्छा कहा। और मैं अगर देखूं तो किंसुक में अगले पिछले मैं वो मनभावन में हमारे ख्याल से शुरू से ही आ रहा है, शुरुआती 1-2 और आपके ये एपिसोड्स देखकर, इसमें पार्टिसिपेट करके तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हमेशा नया होता है कुछ। ठीक है, तो किंसुक को कुछ नया सीखने को मिलता है और ये करता भी है बड़े शौक से। मैं बाद में भी इसको रिपीट करवाती हूँ कई चीजें, क्योंकि उस टाइम कई बार नहीं ये उसने अच्छे से करता, लेकिन बाद में क्योंकि इसको होता है दिमाग में कि हाँ ये चीज मैंने की हुई है या मम्मा कर रही थी, तो ये बाद में दोबारा करता है। और वीडियो भी मैं रिपीट दिखाती हूँ इसको आपके। तो ये चीज तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद, इसके लिए तो क्या होगी, मेरे लिए बहुत फायदेमंद चीज है। जो आप मनभावन में करवा रहे हैं बच्चों को। और मतलब मैं तो ब्लेसिंग्स मांगूंगी आपके लिए भगवान से कि मतलब आपको और बरकत दे हर चीज में, कि आप ऐसे एपिसोड चलाते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं किंसुक की मम्मी ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि किंसुक को जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज ए प्रोफेशनल, वो उसका पूरा सब कुछ है, ठीक है। वो समझता हर बात को है। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं समझता है या फिर उसको किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। सिर्फ एक लैंग्वेज का बैरियर है। हो सकता है कि उसका जो लैंग्वेज है वो बोल के साउंड वाला लैंग्वेज नहीं हो सकता वो जेस्चरल लैंग्वेज हो, लेकिन एक्शन वाला लैंग्वेज हो। तो आपको बीइंग ए पेरेंट हमें एक कभी ना कभी किसी एक इस स्थिति पे पहुंचनी चाहिए कि हमें उस बच्चे का को अब एक स्टेटमेंट हमें बदलने की जरूरत है कि हमारा बच्चा समझता है। वो हो सकता है वर्बल लैंग्वेज नहीं समझता हो, लेकिन जेस्चरल लैंग्वेज समझ लेता है, ठीक है, पूरी तरह से। अब अगर वो बच्चा आपका जेस्चरल लैंग्वेज समझ लेता है तो हमें वी हैव टू थिंक आवर कम्युनिकेशन मोडालिटीज, कि हमारा जो कम्युनिकेशन उस बच्चे के साथ का मोडालिटीज होगा वो किस तरह से होगा। और आपने बहुत ही अच्छा पिकअप किया, मैं आपको भी ऑब्जर्व करता हूँ और किंसुक को भी, कि दोनों ने काफी अच्छे काम किए हैं इस लॉकडाउन के दौरान। ओके, देन आई विल गो टू द आवर एक्सपर्ट। हैं, एक चीज मैं ऐड करूं, जैसे मैम ने बहुत बताया, मैं आप ही के पास जा रहा था प्रबल जी, आप शुरू भी कर लीजिए बोलना भी। मैं आपको सवाल भी दे ही देता हूं कि जो आप जो ट्रेनिंग रिसोर्सेस यूज करते हैं वो कैसे रिसोर्स यूज करते हैं पेरेंट्स ट्रेनिंग में, क्या क्या चीज यूज करते हैं, वो भी आप बताइए जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, उससे पहले जो मैं एक चीज ऐड कर रहा था, एक जो बहुत मैंने कमाल की चीज नोटिस करी वो ये था सर कि जनरली मैंने ये नोटिस किया कि चाहे बच्चा स्कूल में पेरेंट्स आ रहे हो, चाहे वो थेरेपीज में आ रहे हो, मोस्टली एक चीज बड़ा कॉमन था। मोस्टली हम 90% के साथ देखा कि वो कहीं ना कहीं सिंगल पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी था, कि या तो मदर ही बच्चे का पूरा टेक केयर कर रहे हैं। हमने फादर को थ्रू आउट द 2 ईयर 3 ईयर हमने देखा ही फादर कौन है, या कभी कभी ऐसा भी सेम होता था कि फादर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं बच्चे की, मदर वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना शेयर नहीं कर रहे थे। एक बहुत की चीज इस टाइम पर भी हमने जो की वो ये हुआ कि कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होना बहुत अच्छे से किया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वो ये कि बच्चा था हमारा, सीपी बच्चा है, तो उसको ड्रिवलिंग का काफी इशू था, तो वो ड्रिल करता था, मोस्टली के साथ बड़ा कॉमन इशू है। तो लॉकडाउन में उसके फादर फ्री थे, तो मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट किया, तो उन्होंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि चलिए इसका काम मैं इसके साथ रेगुलर करूंगा। और आप बिलीव करिए सर कि जो ड्रिवलिंग की एक्सरसाइज या थेरेपीज वो बच्चा से लगातार ओटी और फिजियोथेरेपीज के रहा था, वो उतना कंट्रोल नहीं हुआ। और जब वो पेरेंट्स उसके साथ इंगेज हुए, इन्वॉल्व हुए, ट्रेनिंग के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छे से फोकस करके उस चीज पे काम किया। और विद इन 2.5 months, बल्कि 2 months में ही आज मतलब कंडीशन ये है कि वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो पूरा उसका कंट्रोल हो गया है। तो ये सब बहुत मतलब अच्छी चीजें भी आई कि इस टाइम पेरेंट्स ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना सीखा कि ठीक है, केवल मदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ काम मुझे भी करने हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज था। दूसरा एक पॉइंट है वो है कि स्टूडेंट का जो एंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं हमने नोटिस किया कि स्टार्टिंग की कुछ क्लास, जैसे रैपो बिल्ड करने में टाइम लगा, हमने जो जैसे रिसोर्सेज की बात, हमने स्टार्टिंग से कोई बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट नहीं किया। स्टार्टिंग में हमने उनको जस्ट वीडियो कॉल करके बातचीत करना, अपने आप टॉयज दिखाइए, आपके घर में क्या है, आप अपना मुझे
बालकनी दिखा दीजिए, इस टाइप की चीजें, उनसे बहुत जनरल बातचीत करना शुरू किया। फिर उसमें हमने छोटी मोटी चीजें स्टार्ट कर दी। अच्छा मुझे 2 स्पून लाके दे दीजिए, अच्छा मुझे आप अपनी बॉल लाके दे दीजिए। तो वहां पर हमने इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो वो धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और आज मतलब ये है कि बच्चे इतना अच्छे से इंगेज हो गए हैं कि वो अपने आप को लॉग इन भी करना शुरू, उन्हें पता लग गया है कि इन कैसे करना है, उनको पता है कि मुझे अपना मटेरियल कैसे कलेक्ट करके बैठना है। और अगर बाई चांस हमारे साथ कुछ कनेक्ट किया है, 5 मिनट क्लास लेट हो गई है, तो उनके मैसेज हो जाएंगे, सर क्लास क्यों नहीं हो रही है। किसी दिन गैप हो गया तो वो बोलना शुरू कर देंगे कि आज मेरी क्लास क्यों नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक, और ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी हुआ है कि बच्चों को एक इंडिविजुअल अटेंशन मिलना शुरू हुआ, जो कहीं ना कहीं हम एक नॉर्मल क्लासरूम में उतना फोकस नहीं कर पाते थे बच्चों के बीच में। वो कहीं ना कहीं ये चीज ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू ये हुआ कि हमने बच्चों पे इंडिविजुअल फोकस करना शुरू किया, उनकी नीड्स को इंडिविजुअली कैटर करना शुरू किया। तो उसके बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिले। एंड सर जहां तक आप रिसोर्सेस की बात कर रहे थे कि कैसे रिसोर्सेस आपने यूज किया, तो हमने एक चीज का बहुत ध्यान रखा जब हमने रिसोर्स बच्चों के साथ शेयर करना शुरू किया, जो TLM शेयर करना शुरू किया, कि वो हमारा एक तरह से बच्चे के लिए वो मल्टी सेंसरी अप्रोच में हो, कि सारा रिसोर्स केवल वीडियो फॉर्मेट में ही ना हो, सारी हम यही नहीं हो कि हमने बच्चे को 20 वर्कशीट्स एक दिन में भेज दी, भाई ये वर्कशीट करा लीजिए, और या फिर हमने केवल एक बस पेरेंट्स को वर्बली समझा दिया और काम कर दिया। हमने कहीं ना कहीं इसको कंबाइन किया। हमने जो ट्यूटोरियल उनको के थ्रू जो चीजें समझाई हैं, उसका हमने कहीं ना कहीं वीडियो सपोर्ट भी दिया उनको। सपोज दैट हमें बच्चे को प्री राइटिंग में बहुत सिंपल एक्टिविटी है कि डॉट जॉइनिंग करना है, तो मैंने उनको बाकायदा एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बना के उनके साथ वो शेयर किया कि डॉट जॉइनिंग हमें कैसे कराना है। और अब कहीं ना कहीं उसमें कलर कोडिंग का यूज किया। सपोज दैट ग्रीन सेज गो, तो हमने ग्रीन डॉट से बता दिया कि ग्रीन से आपको स्टार्ट करना है बॉक्स के अंदर, रेड पे स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा हमने ऑडियो उसमें इंक्लूड किया, लाइक ग्रीन से गो, रेड से स्टॉप। तो आप ग्रीन से आप पे आपको स्टॉप के साथ फिर हमने बहुत सारे सपोर्ट उससे रिलेटेड हो सकती है सीट उनके साथ शेयर की कि कैसे आप बच्चों की सपोज प्री राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। तो हमने इन 3 चीजों का खासकर ध्यान रखा कि जो बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं वो उस रिलेटेड मटेरियल भी ऐसा हो जो मल्टी एक तरह से सेंसरियल जिसमें अप्रोच यूज हो, जिससे कि बच्चा सपोज अगर वो ऑडिटरी कॉन्सेप्ट अच्छे से बोल के नहीं समझ पाया तो वो वीडियो देख करके चीजें सीख ले। अगर उसमें नहीं है तो पेरेंट्स के साथ जब वो ट्रायल के साथ ट्रेनिंग करेगा, जब वो वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करेगा, तो मे बी उसके साथ वो ज्यादा बेटर करना शुरू कर दे। और ये सारी चीजें हमने हर स्किल के साथ किया, हर स्टेज वाइज, चाहे वो बच्चे की प्री एकेडमिक स्किल की बात हो, चाहे प्री वोकेशनल स्किल्स की बात हो, वो हम एक स्टेप वाइज लेके गए उस चीज को। ग्रेट। मैं एक खबर यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। एक हमारा बहुत ही वॉलंटियर भी है, और श्रेयांश जो है अभी उसने 6th क्लास पास किया, 6th क्लास, और उनको बहुत सारा टॉपर किया, 6th क्लास टॉपर है। श्रेयांश, यू वांट टू स्पीक समथिंग? श्रेयांश, या आई एम अनम्यूटिंग योर, यस, व्हाट यू वांट टू स्पीक श्रेयांश? Unmute yourself. सर मेरे को क्लास 7 में बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट्स आया है सर। वेरी गुड। तो ये क्या लास्ट ईयर क्लास 7 पे आया है? कोरोना के कारण घर में पढ़ाई किया, इससे आया? नहीं सर, हम अभी 8th क्लास पे है सर, 8th क्लास पे। वेरी गुड। सो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। एंड देन वी हैव मेरे पास एक उमंग बहल है। उमंग जी, व्हाट यू वांट टू से? उमंग जी। Yes. Good evening to all. I am Umang's mother, myself Sonia. Okay, I just want to ask, मैं मन भावना का मुझे रेगुलर मैसेजेस आते हैं, मैं कुछ क्लासेस मिड में अटेंड करती रहती हूँ, कभी कभी उमंग भी मेरे साथ क्लासेस अटेंड करता है, and he loves your classes a lot and he learns so many things from your classes. Sir, my question is this: he is a child of 14 years old. Now at that time I am very much confused where I have to focus for my son. Either I can focus on his academic or on the pre-vocationals or on the life skills.
and he is a very cooperative and very, very smart child. He can understand whatever I teach him. Okay. Prabalji, you want to give the reply? मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें हम लोग जनरली एक बहुत बड़ी गलती करते हैं सर, मैंने जो नोटिस किया है पैन के साथ, हम लोग किसी ना एक चीज पे फोकस करना चाहते हैं। वो बात सही भी है कि चलिए हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग एक चीज पे फोकस करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कहीं भी कि हम दूसरी चीज को छोड़ देंगे। ठीक है, जितना बच्चे के लिए प्री वोकेशनल स्किल जरूरी है, आई थिंक उतना ही बच्चे के लिए एकेडमिक, रीडिंग, राइटिंग, फंक्शनल एकेडमिक्स भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा सक्सेसफुली उसका क्लासरूम टू वर्क प्लेस ट्रांजिशन हो, तो उसके लिए हमें एकेडमिक स्किल की भी बहुत जरूरत है। तो बहुत जरूरी है कि हम एक उसका कॉम्बिनेशन लेके चलें। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा हम एकेडमिक पे फोकस करें, बट एटलीस्ट जो बच्चे की कैपेबिलिटीज हैं, बच्चे की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जितना वो मैक्सिमम कर सकता है, और हमें वो एकेडमिक पे भी टारगेट करना चाहिए। फिर डेफिनेटली जैसे ही एज बच्चे का 12+ है, हम पहले से पूरा हमें प्लानिंग करना है कि बच्चा किस चीज में अच्छा है, उसका एप्टीट्यूड किस में बेटर है, कौन सी स्किल ट्रेनिंग में वो अच्छा कर सकता है। और इसका एक बहुत अच्छी चीज ये है कि सर आज से शायद 3-4 साल पहले तक NIOS को कोई सीरियसली नहीं लेता था। मतलब NIOS समझते थे कि हमारे बच्चे तो NIOS जा ही नहीं सकते, या मतलब 10th और 9th कर ही नहीं सकते। और इस साल स्पेशली मैंने मतलब सोशल मीडिया के थ्रू जाना है कि बहुत सारे हमारे बच्चे NIOS के थ्रू वो 6th पास कर रहे हैं, 8th पास कर रहे हैं, 10th 12th सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जा रहे हैं। और इवन जैसा आप मनोविकास में है कि बच्चे हमारी डिग्री भी ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम मनोविकास ने कन्वोकेशन प्रोग्राम किया डिसेबल बच्चों के लिए, और उसमें बाकायदा वो डिग्री भी लेके आ रहे हैं, बैचलर डिग्री लेके आ रहे हैं, इवन टीचर ट्रेनिंग के कोर्स कर रहे हैं। जैसे आपका ही मनोविकास का एक लड़की है जिसने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा कर लिया। तो ये मतलब हमें थोड़ा सा ब्रॉड होके अब सोचने की जरूरत है। एक वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पर वही पैकेजिंग यूनिट्स, वही कैंडल मेकिंग, वही मसाला मेकिंग, उनसे थोड़ा सा हमें, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हम रिटेल की तरफ जाएं, IT की तरफ जाएं, कहीं ना कहीं। और आजकल बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जो काफी इमर्जिंग हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, ज्यादा गाइड कर सकते हैं सर। Yes, Mr. Yadav, and yes, Mr. Yadav, I just want to know about that YouTube channel that you had in a आप पहले स्टार्टिंग में बता रहे थे, मुझे उस YouTube चैनल एंड उस ग्रुप्स के लिए बारे में पूछना था, हाउ टू इनरोल इन दैट। आलोक सर बता देंगे, प्लीज आलोक सर। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, चैनल एक जैसे कि सर ने पहले बताया था, अक्षिक जी हैं जो एक चैनल चलाते हैं हेल्प फॉर स्पेशल। तो उस चैनल में वो जनरली वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की वीडियोस हो, चाहे वो रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड हो। तो वो वीडियोस आप एक बार सर्च करिए, आपको काफी हेल्प करेगा। सर ने बताया है उस चीज के बारे में। हेल्प फॉर डिसेबल्ड, हेल्प फॉर और मैं सोनिया जी, हेल्प फॉर स्पेशल, सोनिया जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। हमेशा जब भी, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो, नॉन डिसेबल्ड बच्चा हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, ठीक है, द चाइल्ड इज चाइल्ड फर्स्ट, ओके। तो उसके हिसाब से वो जिस एज के हिसाब से या उसकी एबिलिटी के हिसाब से जहां वो एक्सेल कर रहा है, वो हमारा करंट लेवल है। अगर वो अभी आपका बच्चा से फॉर एग्जांपल की 4th क्लास में है, कहीं किस क्लास में पढ़ाई कर रहा है वो? सर रेगुलरली ही इज गोइंग टू अ वेरी नॉर्मल स्कूल, DAV, जिसके कि उन्होंने स्कूल के अकॉर्डिंग उसको 8th क्लास में तो प्रमोट किया हुआ, बट एकेडमिकली उसका लेवल वही 3rd 4th वाला ही। ओके, तो अगर वो 8th क्लास में है, हम कम ना आके अगर वो आपके बच्चे के पास वो 8th क्लास का सर्टिफिकेट आ जाता है, दैट चाइल्ड इज एबल टू एंटर इनटू द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आप देखते होंगे कि स्किल इंडिया का पूरा प्रोग्राम है, वो उसका कहते हैं NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जैसे आपका NEP निकला है, उसी तरह से स्किल का क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। तो उसमें एंटर करने के लिए मिनिमम 8th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो अगर वो बच्चा आपका 8th क्लास में है और कुछ नहीं कर रहा, फॉरगेट अबाउट इट। अगर उसके पास 8th क्लास का सर्टिफिकेट भी है, तो वो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा सकता है।
अगर वो 8th क्लास कर लेता है तो वहां से अगर हम आगे उस बच्चे को निकालें तो 9th 10th 12th भी वो NIOS से कर सकता है। NIOS से पास करने के बाद वो कॉलेज भी जा सकता है। सो ऑप्शन इज बेस्ड ऑन योर चॉइस एज ए वार्ड, एज ए गार्डियन ऑफ द चाइल्ड। और सेकेंडली कि जो उस बच्चे की एबिलिटी है या उस बच्चे का जो चॉइस है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस दो चीज को फ्रेमवर्क में रख के सोचना है कि आप कहां तक उसको पहुंचा सकते हैं, आपके बच्चे का चॉइस क्या है। उसके बाद मैंने जो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि फिल्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है। आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले लिए कि 14 साल का हो गया हमारा बच्चा, अब तो प्री वोकेशनल ट्रेनिंग में जाना चाहिए, 14 साल का हो गया अब लाइफ स्किल में जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन सारा ऑप्शंस मेरे लिए नहीं है, हमारा जो ऑप्शन मेरे लिए है मैं उसको सेलेक्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो अगर वो 14 साल का हो रहा है और सपोज वो आपने कहा कि 3rd और 4th लेवल का है, तो आपको थोड़ा सा उसको रेमेडियल क्लासेस के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि आपको आने वाले समय में NIOS के बारे में सोचना चाहिए कि हमें इसको एकेडमिकली कहाँ तक बढ़ाना है। अगर वो एकेडमिकली ग्रोथ करता है तब भी नौकरी है, अगर वो स्किल के थ्रू ग्रोथ करता है तब भी नौकरी है। तो वो चॉइस इज योर्स एंड एज वेल एज द बच्चे की जो एबिलिटी है उसके साथ। ठीक है उमा सर, माय क्वेश्चन इज ओनली दैट, या बोलिए। सर माय क्वेश्चन इज ओनली दैट बिकॉज़ आई एम नॉट सीइंग progress in his academical skills, that is why I want to search for this vocational training. क्योंकि मुझे academic में बहुत टाइम से एक stagnant growth ही दिख रही है। I am not able, even I am working with my child, बट मैं उस ग्रोथ को पुश नहीं दे पा रही। ठीक है, अभी आपके पास बच्चे को हम अगर स्किल ट्रेनिंग में डालें और स्किल ट्रेनिंग से उसको जॉब तक डालें तो यू हैव 4 years बिकॉज ही इज इन 14। ठीक है, तो हमारे पास 4 साल और समय है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग तक पहुंच सकते हैं। अगर हम 4 साल थोड़ा और मेहनत कर लें वोकेशनल स्टडी में तो हो सकता है वो 10th क्लास पास कर जाए। तो आपको इस तरीके से भी देखना है। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आपको लगता है कि हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, देयर इज ए रोल ऑफ द काउंसलर्स। ठीक है, हमारे जैसे लोग जो बैठे होते हैं जो ये काउंसलिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग की बात होता है, ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग की बात होती है, ऑनलाइन स्किल असेसमेंट की बात होती है। तो आपको उस तरह के ऑप्शंस ढूंढने का समय है अभी आपके पास, यू कैन ट्राई दैट थिंग्स। सो उमा ककरोती जी, उमा थैंक यू सर कराकोती जी, उमा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बहुत सी बातें हो गई है, मैं थोड़ा सा मतलब जो चाह रही थी मैं बोलना वो मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को ये महसूस हुआ कि जब स्कूल जाते थे बच्चे तो पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते थे कि बच्चा 4 घंटे के लिए स्कूल में चला गया तो वो टीचर के हवाले है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से ये बहुत फर्क पड़ा है कि पेरेंट्स को भी पता चला है कि ऐसे बच्चे किस तरह पढ़ते हैं, इनका पढ़ाने का मेथड, इनको बिठाने का किस तरह उन्हें बिठाना है, किस तरह उन्हें समझाना है। ऑनलाइन ना टीचर सामने है लेकिन फिर भी बच्चे उस टीचर का कहना मान रहे हैं और बैठ रहे हैं। इसको देखते हुए उन्हें भी इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि वो लोग भी खुद इस क्लासेस को उन बच्चों के साथ ज्वाइन करने लग गए और डेली वो बच्चे नेक्स्ट क्लास के बारे में हमेशा पूछते थे। तो ये ऑनलाइन जो क्लासेस है उसके अगर जो सामने ना होके पर्दे के पीछे एक तरह से आमने सामने सिर्फ वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम बच्चों को देख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उससे भी बच्चों ने इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और कांटेक्ट करना, बहुत से और खुद काम करना, बहुत कुछ सीख लिया सर। तो मैं तो अगर इसमें कोविड में अगर हमें लग रहा है कि हम बंद गए हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहा है सीखने का भी और समझने का भी। थैंक यू सर। हेलो हेलो शुभांगी मैडम, आपने हैंड रेज किया है, अगर आपको कुछ कहना है तो आप बताएं। शुभांगी साहू मैम। मेरे ख्याल से स्टार्ट, अच्छा
उमा जी थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं शुभांगी साहू मैम के पास जानी चाह रही हूँ। मैडम नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सुनने वाली हूँ। मेरा एक प्यार से एक शिकायत है आपसे। चलिए कीजिए। करूँ? तो हाँ जी, हाँ जी। आज मेरे को नहीं आया है न्यूज जो मन वेबिनार का, इसलिए मैं दुखी हूँ मैम। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? हाँ मैम, व्हाट्सएप में नहीं आया, मेल में भी नहीं आया। मेरा दोस्त से हम लाके आधा घंटा चला गया है। क्या टॉपिक है कुछ मैं ब्लाइंड में ही सुनती रहती हूँ। कोई बात मैं नहीं, बोली देख लेती हूँ कि आपका नंबर आपने ब्लॉक कर रखा है या क्या कर रखा है। नहीं मैम, कुछ सभी नहीं। को मैसेज कर रखा है। हाँ, इसीलिए मैं बोली मैं प्यार से शिकायत करूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी शिकायत सर आंखों पर, हम इसको देख लेंगे। वाह, ये तो मैं तो सुनते जाती रही, वो इतना अच्छा लगता है सबका एक्सपीरियंस देखे। मेरा तो एक्सपीरियंस का साथ मिलता जुलता है मेरे रश्मि का साथ, जो 36 मैंने आ गया है मेरा, मैंने पूरा ओवरलुक हो गया है। मैं सबका साथ शेयर करती हूँ, सबका साथ सुनती हूँ, और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद है, सबका थैंक्स है मैम। थैंक यू वेरी मच शुभांगी जी। मैं थोड़ा सा आज मेरे इधर नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था अभी कुछ सेकंड के लिए, तो इसीलिए मैं कट गया था। ओके, भारती कामना महेश्वरी जी, मैं शॉर्ट में बोलूंगा, एक मिनट करके, अगर आपको बोलना है प्लीज। कामना जी। हेलो जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, माय क्वेश्चन इज, मेरे बेटे को टीवी या ये जो लैपटॉप या ऑनलाइन क्लासेस की जो प्रॉब्लम है, उसका तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो टीवी देखे या मोबाइल देखे। तो कैसे मैं उसको इंटरेस्ट दिलाऊं ऑनलाइन क्लास के लिए? ये तो वो 0% भी टीवी मोबाइल में देती नहीं हूँ इन स्टार्टिंग। और रही बात ये मेहनत करने की, तो सर ऑफलाइन थी या जब से मेरे बच्चे की रिपोर्ट डायग्नोज हुई है, आप मेरी पोस्ट ऑलमोस्ट सब चेक करते ही हैं, और मतलब मेरे साथ तो ये बहुत बिग प्रॉब्लम है। मैं तो उसको ऑनलाइन क्लास ही नहीं करा सकती, तो हाउ कैन आई डू? मैडम, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा जी कि बदलाव, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इवन कि हमारे सोच में भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग पहले बच्चे को कहते थे कि मोबाइल नहीं मिलेगा तुम गलत रास्ते पे चले जाओगे, और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी बेटी 10th क्लास में एक मोबाइल भी देना पड़ा, एक लैपटॉप भी खरीद के देना पड़ा, क्योंकि उसके एजुकेशन की नीड थी। तो चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो या नॉन डिसेबल्ड बच्चा हो, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें उसकी जरूरत को देखना है, ठीक है। अब रहा बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जैसे आपने मोबाइल नहीं देना सिखाया था शुरू में, मोबाइल का यूज, मैं प्रैक्टिकली वर्क करने में बिलीव करती हूँ। हाँ, नहीं, आपको थोड़ा सा अपने बिलीव को बदलाव करना होगा, ठीक है ना। तो ये जब आप अपने थोड़े से, आपको अपना जब स्ट्रगल आप शुरू करेंगे ना कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें बच्चे को स्क्रीन से भी थोड़ा रूबरू कराना है, तो फिर क्या होगा, तभी बदलाव आ सकता है। अगर मैं आपको कोई सॉल्यूशन दे दूं, आप ये कर लो वो कर लो, ये तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट का ब्लॉकेज होता है कि हम किसी सिस्टम में कितना यूजफुल होते हैं। और एक चीज मैंने देखा है कि जो भी हमारे स्पेशल नीड वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, धीरे धीरे जब वो लैपटॉप या मोबाइल पर आ जाते हैं तो वो इतना सारा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इतना सारा वो आगे बढ़ जाते हैं कि फिर हमें आगे उसको उसके लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप लॉग इन करते हैं, अपने आप इंटर करते हैं, बहुत सारा चीज खुद करने लगते हैं। तो आपको एक बार इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है नहीं, कि उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसको 15 डेज हमें जब मनभावन का प्रोग्राम, और आपका, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई प्रोग्राम है। इवन मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही हो जाती थी कि मॉर्निंग मैंने एक्टिविटी करा ली, इवनिंग करा ली, बट नून टाइम में कराऊंगी क्या? एटलीस्ट तो लाऊंगी बच्चे को। बट जब से उसने मनभावन का है तो वो डेली पूछता है कि डेली क्लास क्यों नहीं होती है, और जैसे ही मैम आती है तो बस खुश, उसे पता है हाँ मैम बोलने वाली है और मेरे को स्टार्ट करनी है एक्टिविटी। बट 15 या 20 मिनट्स के बाद ना एक उसको बोरिंग, मतलब स्क्रीन पर बिठाना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, 15 मिनट्स इज वन अचीवमेंट, वन माइलस्टोन। तो नाउ यू टारगेट फॉर 20 मिनट नेक्स्ट माइलस्टोन। नहीं, अभी तो आप देखिए मनभावन को वो पूरा सेशन ले रहा है 1.5 घंटे का। अब वो 1.5 घंटा आपका माइलस्टोन पूरा कर रहा है, ठीक है जी। तो हमें स्टेप बाय स्टेप अगर हम छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे चलेंगे तो आई होप कि वो कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, लर्निंग प्रोसेस ही ऐसा है
कि अगर हम डेली उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा सिखा रहे हैं और कंटिन्यूअस सिखा रहे हैं तो वो बच्चा या वो व्यक्ति स्किल्ड हो जाता है उस काम में। सो लर्निंग के बाद स्किल होने की बात होती है कि हम लैपटॉप देखने में स्किल्ड हैं कि नहीं, हम लैपटॉप से पढ़ने में स्किल्ड हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा अब आपको स्किलिंग पे उसका काम करना होगा और फिर आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। वो उसको एपिलेप्सी है ना, तो एपिलेप्सी में तो स्क्रीन वगैरह से काफी दिक्कत नहीं है मैम। बहुत बड़े बड़े एपिलेप्टिक लोग जो है कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सिर्फ हमें एपिलेप्सी में पानी के जगह से बचाना है, आग की जगह से बचाना, जो काफी हजार्डियस है। स्क्रीन के पास कोई एपिलेप्सी से कोई, आई डोंट थिंक कि अभी तक ऐसा कोई रिसर्च आया है कि स्किल उससे कोई असर पड़ेगा एपिलेप्टिक पे। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलना होगा। भारती जी, भारती परेडा जी, ओके, सी आई थिंक लेफ्ट, एंड वेंकट रमन जी, ओके, एंड जीएम सेखिया जी, जीएम शेख, ओके, एंड QCOMBD आपका मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल, हाँ बोलिए, आपको कोई बात करनी हो तो बताइए। QCOMBTD, ओके, नाउ ओके, एक और है अवनीश जी। जी अवनीश जी, अविनाश विट्ठल राव सर। हाँ जी, जी अविनाश विट्ठल राव सर, आपको कुछ बोलना, बताइए। हाँ सर, वो आपके जो तीनों सर्टिफिकेट थे वो मिल गए सर पोस्ट पे। अरे कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट के लिए तो हमारा वेबसाइट खुला हुआ है और आप कभी भी सर्टिफिकेट। ना सर, थैंक यू। ठीक है, नाउ आई वांट टू शो आप सभी को एक मैं प्रोमो दिखाना चाह रहा हूँ कि जो अभी अपने यहाँ मन भावन में जो अभी बात कर रहे थे सभी लोग कि मन भावन अच्छा है, ये है, तो हम आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं थ्रू दिस प्रोमो कि हमारे जितने भी स्पेशल बच्चे हैं आप सभी मिलके इस, और पेरेंट्स सभी आइए गरबा डांस विद मन भावन मित्र मंडली। This is a special and joyful occasion for participation by persons with disabilities, including intellectual and developmental disabilities, autism, ADHD, learning disabilities, and persons having high support needs. Garba dance in Man Bhavan program on Friday 23rd October at 3 p.m. To join live on Zoom, register at the website manbhavan.manovikas.family. Thanks. तो आप सभी को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं 23rd को। आप जरूर आप सभी गरबा डांस में आइए। और मैं अंत में जाना चाहूंगा थोड़ा सिंपल टिप्स के लिए। मैं सबसे पहले टिप्स सोचूंगा कि प्रबल जी, आप यू वांट टू से समथिंग इन योर टिप्स? यस सर। शॉर्ट टिप्स, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू गिव समथिंग? यस सर। सेम जैसा आपने बताया सर, एक की वही है कि ऑनलाइन जो ट्रेनिंग आपने जो आज टॉपिक रखा, ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर पेरेंट्स, तो डेफिनेटली विदाउट पावरिंग द पेरेंट्स हम लोग सोच नहीं सकते कि वी कैन एम्पावर द पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एनी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो की यही है कि हमें अपने आप को एम्पावर करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। एंड जैसे अभी एक जो पूछ रहे थे कि स्क्रीन नहीं देख रहा है, हालांकि उन्होंने खुद ही बाद में बोला कि नहीं मन भावन वो देख रहा है, तो इसी से पता चल गया कि बच्चा सब कुछ देख रहा है। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें दिखाना क्या है, तो लिमिटेशंस हमें सेट नहीं करनी है। फिर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे, स्पेशली ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ ये है कि वो स्क्रीन टाइम में नहीं वो आई कांटेक्ट दे पाते हैं, या स्क्रीन के साथ थोड़ा सा रहता है कि नहीं वो उतना नहीं देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत छोटी छोटी चीजें करिए आप, बहुत ही ब्राइट कलर के टॉयज, उनको आप पहले बच्चे को उस पर फोकस करने दीजिए। आप राइम्स वगैरह, कोई बच्चे से रिलेटेड वीडियोस रन कर दीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो
फन एक्टिविटीज हैं, अगर हम वो इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर हम चाहते हैं उसको बढ़ाना। और नहीं तो अगर बच्चा काम चल रहा है विदाउट स्क्रीन के तो चलने दीजिए, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग है। अगर वो 1-on-1 में बैठ के अच्छे से काम करता है, विदाउट स्क्रीन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर बच्चे का जरूरी नहीं है कि वो IT से ही बहुत अच्छा सीखेगा, ICT बेस्ड जो हमारे मॉड्यूल सीखेगा। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को एम्पावर करते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को बिल्ड करते रहना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। नाउ मैं चाहूंगा कि जो हमारे अगले एक्सपर्ट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवील करना चाहूंगा कि हम दोनों क्लासमेट भी हैं। अरे वाह। तो और मैं इनको जानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा। मैं देखो इतनी अच्छी बात कही कि अजान हो गई। ये लगता है आपके ही माइक से अजान हो रही है। जी सर, जी सर। हाँ, देखो मेरी बात 100% सही है। मैं ज़ैद बात कर रहा हूँ। बहुत ही पाक साफ है। डॉक्टर ज़ैद, हम लोग रुक जाते हैं 1 मिनट, अजान पूरी सुन लेते हैं। कुछ नहीं, अगर 3-4 किलो तहरी बनाने का रहा तो मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है, शाम में जी। कंफर्म नहीं है लेकिन रात को बोलता हूँ अच्छी बना के देता। तो अब्दुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सॉन्ग है जो आप सुना सकते हैं। आप तो बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाते हैं, लेकिन साफ कोई एक गाना सुना दीजिए आप अपने टिप्स में। ठीक ठीक। जी सर। 1 मिनट अजान हो जाने दें, खत्म। अजान हो गया, 1 मिनट। Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah। जी सर। जी, थैंक यू, और अजान सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर। वो हमारा मकान जहाँ है वहाँ से मस्जिद बहुत करीब है, तो अजान की आवाज 5 वक्त आते रहती है सर। वेरी गुड। सर, अभी प्रवल सर ने बहुत अच्छे टिप्स बताए कि फन को इंक्लूड करना चाहिए। हमें बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए फन की बहुत ज़रूरत है। फन एक्टिविटीज़ और फन वीडियोस इंक्लूड करेंगे तो बच्चा हमारा इंटरेस्ट पैदा करेगा सर। सर, इसी का एक भाग के रूप में मैं आपकी इच्छा पर सर एक गज़ल है सर, जो द किंग ऑफ गज़ल्स, द लेजेंड जगजीत सिंह मरहूम, वो अक्सर इस गज़ल को गाया करते थे। उनकी ही गाई ये गज़ल है। वो हमारे सारे दर्शकों के लिए, हमारे सारे पेरेंट्स के लिए, और फन इंक्लूड हो जाए आज के इस मशवरे में, उसके लिए सिंग करना चाहूंगा सर। अगर आप इजाजत दें तो शुरू करते हैं सर। बिस्मिल्लाह। सर, म्यूजिक लेने में समय लग गया सर, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है।
लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाके जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझ है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। थैंक यू जी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपका जो आज टॉपिक था, आपके जो वक्तव्य थे और आपका जो ये गाना था, दोनों तीनों सब चीज जो है कि एक पर एक था। और सबसे अच्छा था आज की अजान। मैं इसी अजान के साथ जाना चाहूंगा कि गुप्ता सर प्लीज। गुप्ता सर, या अनम्यूट कर लूं अपने आप को। थैंक यू सर। एक तो मलिक साहब को और रावल जी को सुनकर के बहुत मजा आया। प्रबल जी को सुनकर के बहुत मजा आया। जी जी। हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। According to the census, I think 2011, लगभग 2.68 crores persons with disabilities हैं, which makes nearly 2.21% of the total
population. Now, the State of Education Report 2019 वो ये कहती है कि there are 78,64,636 children with disabilities, which makes nearly 60% of the total children are between 5 to 19 years and are in schools. तो आप मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम देखिए कि हमारे कितने बच्चे 5 to 19 years के बीच में हैं जो स्कूल्स के अंदर हैं, और कोविड में जो लॉकडाउन हुआ तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे उनकी पढ़ाई होगी? रेगुलर को छोड़ दो, हम तो आई टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज ओनली, तो उनकी होगी। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या रह गया था जो आपने शुरू किया, जो और लोगों ने शुरू किया, जहां हम शिफ्ट हुए टुवर्ड्स ऑनलाइन। नाउ व्हेन क्लासेस शिफ्टेड फ्रॉम ऑनलाइन मोड, जब क्लासेस रेगुलर से वहां शुरू हुई तो हमारे पास में लॉजिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म के बारे में हमने सोचा नहीं, विदाउट थिंकिंग कि जिन बच्चों के लिए हम ये क्लासेस शुरू करने वाले हैं उनके पास में लॉजिस्टिक सपोर्ट है या नहीं है। जो प्रबल जी ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि लोगों के पास में मोबाइल नहीं थे, मोबाइल था तो हेडफोन नहीं था, हेडफोन था मोबाइल था तो वो एंड्रॉइड फोन नहीं था, तो वो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं था। नंबर 1, नंबर 2, वेदर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, IIDs, intellectual disability and development disabilities and their parents. आलोक जी ने शुरू में कहा था 70% ऑफ द पॉपुलेशन, 80% थी, अब 70% हो गई। पहले जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त कहते थे कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन रूरल एरियाज, अभी वो 70%, 10% शिफ्ट हो गया रूरल से अर्बन में। तो क्या उनके पास में मैकेनिज्म था? डिड दे नो अबाउट द मैकेनिज्म कि इसको हमने कैसे ऑपरेट करना है और कैसे ऑपरेट क्या करना है? ना पेरेंट्स इस शिफ्ट से पेरेंट्स को भी और चिल्ड्रंस को भी, दोनों को ही बहुत प्रॉब्लम थी ना। जब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे को 3 चीजें बहुत जबरदस्त ध्यान में रखनी चाहिए: व्हाई, व्हाट एंड हाउ। व्हाई यू वांट टू डू online training? What is the objective of that particular episode you are doing online? That should be very, very clearly known to me and to my clients. Clients are those who will be attending online. फिर वो ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, What are the materials, कैसे हम करेंगे, और तीसरी चीज है how we are going to do it. क्या सिर्फ मैं लेक्चर दूंगा, क्या मैं लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगा, या क्या मैं प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखाऊंगा, बच्चे भी कराएंगे। तो जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो इनके लिए द पेरेंट्स और आई विल से द क्लाइंट्स शुड बी प्री इन्फॉर्म। उनके पास में पहले से इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने एक्टिविटी प्लान की है वो एक्टिविटी करने के बाद में उनका बच्चे क्या सीखेगा, व्हाट विल बी द चेंज, क्या परिवर्तन उसमें आएगा, या what he will be able to do, वो क्या करेगा, क्या कर सकेगा, नहीं क्या करेगा। तो ये हमारे को बिल्कुल क्लियर शब्दों में उन पेरेंट्स को बता देना चाहिए। नंबर 2, कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि यहाँ जब हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं मेरे पास में बहुत सोफिस्टिकेटेड मटेरियल होता है। जैसे आपने पहले कहा था कि ग्लास से हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनवाए या वो करवाया, तो वो हमारे को चीजें नहीं देखनी चाहिए। हमारे को जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए जो हर एक के पास में इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि बाजार तो जा नहीं सकते लॉकडाउन में, तो घर में मटेरियल हो। तो वो मटेरियल जो है, जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मेन है वो, और बच्चों के पास में, चाहे वो 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, सभी के पास में सेम होना चाहिए। जैसे अभी पिछले मन भावन में था, वो पांडा बनाना सिखाया, तो सभी के पास पहले बताया हुआ था कि भाई आपको पेपर चाहिएगा, ब्लैक पेन चाहिएगा, सीजर चाहिएगी, गोल खींचने के लिए कुछ चाहिएगा। तो वो सारी चीजें जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जो प्रेजेंट कर रहे थे, उनके पास में और बच्चों के पास में सेम थी। तो हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर कुछ कर रहा, मेरे पास में कोई और मटेरियल है और बच्चों के पास में कुछ और मटेरियल है, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंस। वो बच्चा फैल जाएगा, नहीं मेरे को तो वो चाहिए जो सर के पास में। क्यों? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि सर ने सिखाया ए फॉर एप्पल, माने का ए फॉर एरोप्लेन कहते, तो आपको पता ही नहीं ए फॉर एप्पल ही होता है, एरोप्लेन नहीं होता है। टीचर की बात जो है वो बच्चों के लिए
पत्थर की लकीर होती है, टीचर इज ऑलवेज राइट, द पेरेंट्स कैन बी रॉन्ग। तो वो चीजें हमारे को होनी चाहिए। देन एट द एंड ऑफ द लेसन वी शुड रिकैप्चुलेट, भाई आज हमने क्या क्या किया, ये हमारे को बताना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने क्लासरूम में करते हैं तो ये इट्स अ रेप्लिकेशन ऑफ द सेम क्लास ऑनलाइन। रिकैप्चुलेशन के बाद में असेसमेंट बहुत जरूरी है। असेसमेंट से हमको क्या पता लगेगा कि मेरे से कहाँ चूक हुई, पेरेंट्स से चूक नहीं हुई, मेरे से कहाँ चूक हुई, सो दैट आई कुड नॉट रीच द पेरेंट्स एंड माय क्लाइंट। जो मेरा बच्चा है, जो चाइल्ड विद या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है, मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, मेरे को ये पता लगेगा, सो आई विल बी एबल टू इम्प्रूव। पेरेंट्स को हेल्प विद टेक्नोलॉजी इश्यूज, व्हाट इज ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम, ये उनको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तीसरी बात, हाउ ऑफन मीटिंग शेड्यूल, क्या हम डेली क्लासेस करेंगे, क्या एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे, तो जो शेड्यूल है वो मीटिंग का उनके पास में होना चाहिए। और सबसे बड़ा एश्योरेंस जो उनको हमको देना है, इन केस ऑफ डिफिकल्टी कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कहाँ से मेरे को मदद मिलेगी, वो बहुत जरूरी है। तो सर आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं, धन्यवाद। बहुत थैंक यू। आपके तो क्या कहता है, शब्द जो है वो ज्ञान के ही शब्द होते हैं सर। सो थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा जो है कि कोई ना कोई आइडिया दे के जाते हैं सर। ये परवल जी को और मलिक जी को अच्छे लगने चाहिए ना। जी थैंक यू। So I would like to announce here we are coming on Wednesday, October 24th at 3 p.m. with new topic with Gupta sir. We will Saturday on 24th October we are coming with new topic with Gupta sir. And मैं आज सब पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप जितने भी चैलेंजेस फेस करके अभी देखा है कि क्या क्या चैलेंजेस हुए हैं आपके साथ, या आप शुरू से जब आपका बच्चा, जिस दिन आपको पता चला कि कुछ स्पेशल है, तभी से आपके जो चैलेंजेस आने शुरू हुए, तो आपके जो मन के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी सवाल हैं, मैं कहूँगा कि आप पहले से भी लिख दें। तो हम अभी 2-3 दिन का समय है, हम गुप्ता सर को पहले से भी भेज सकते हैं। आप ईमेल के द्वारा हमें mashwara@manovikas.family पर आप अपने सवाल लिख सकते हैं, और या फिर जब हम लोग लाइव गुप्ता सर के साथ बैठेंगे तो उस समय भी हम सवाल का जवाब लेंगे। और हम लोग आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि 23rd को गरबा है, आपने देखा ही है। आपके आसपास जितने भी स्पेशल नीड वाले लोग हैं, आप उनको जोड़िए। manbhavan@manbhavan.mashwara.live या manbhavan.manovikas.family, ये हमारा वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको पता चलेगा कि क्या क्या कब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप वहां से रजिस्टर कीजिए और अपने आप को जोड़िए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग करीब 2,60,000 के करीब ऑडियंस तक पहुंचे हैं, और एक टारगेट रखा है कि 3 दिसंबर वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी के दिन तक हम लोग 5 लाख तक पहुंचे। तो आप प्लीज जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी हमारे पोस्ट हैं, सबको आप दूर दूर तक पहुंचाइए, जिससे कि हम बहुत सारे लोगों को मशवरा और मनभावन के थ्रू जो है कि बहुत सारी बातें कर सकें। एंड एट द एंड, and it is my privilege to extend my heartfelt thanks on this occasion of 52.14 episode of Mashwara. And I, on behalf of Mashwara team and Manovikas family and the entire fraternity of the institution, first of all I extend my heartfelt thanks, sincere thanks to God कि ठीक रहा। आज भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था यहाँ पर, बट सब चीज सही रहा। On my own behalf, I extend very heartfelt thanks to my expert Abdul Malik ji. He is my class friend, and I can reveal you here one more thing. Thank you Praval ji for coming here and sharing you good knowledge. He is my student. So मेरे दोस्त भी थे और मेरे स्टूडेंट भी थे आज इसमें, तो मुझे अच्छा लगा आज की मैं एक बहुत ही अच्छे एपिसोड को आप तक पहुंचा पाया। So thank you all, and thank you Gupta sir for addressing very informative things. आप बहुत मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि जब भी आप हमारे सेशन में आते हैं या बैठे बैठे भी आप नोट्स लेते हैं, तो उसमें लगता है जो आपका ओपिनियन ऑफ द डे बनता है, जो अद्या ने जो आपको कहा है कि फीडबैक गुरु,
तो वो जो फीडबैक होता है वो आप 1.5 से 2-3 मिनट में पूरी मशवरा को समझा देते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. मतलब आई टॉक अबाउट बेसिक्स ओनली. या बट ज्यादा बड़ी चौड़ी बात तो मेरे को आती है. आई टॉक अबाउट बेसिक्स ओनली. So I also give the big thanks to our volunteers, Adya, Namo Narayan, Abjad Hussain, whoever is volunteering, please write us, Binay Bhatia sir, and we have seen so many things. तो जो भी आप volunteer करते हैं हमें लिखेंगे तो I can take your name here. And I also extend my thanks to my all the staff members. They are very accurate in enormous cooperation in organizing all episodes. Are very important and very courageous. And thank you Rakhi for sign language interpretation, Kaniska for working on Facebook Live, Indra madam for helping on Zoom, Nishtha for content write-up and connecting with all the experts, Susil, Dharamji, Sangeeta madam, Ruby madam, Kallu Khan, everyone, all are the great persons. I am fortunate enough to having you with us in मनोविकास, कि आप लोगों से ही सारा काम चलता है. ये जो मशवरा या मनोविकास के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत हमारे जो स्टाफ लोग हैं उनका जो कॉपरेशन है, उनकी जो मैं हर दिन लगा रहता हूँ कि जो उनका काम है वो बहुत ही क्वालिटी का हो, उनका प्रिसाइजनेस हो और वो हर चीज में दिखता होगा आपको. तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं. सो एट लास्ट आई कैन से फाइनली द वंडरफुल गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स, your active participation with such a great affiliation with Mashwara and Man Bhavan is very lovable, very incredible. So thank you so much for your active participation. Thanks a lot, one and all, those who are directly and indirectly involved in this program. And I have seen so many people, those who have who are participating through our social media. आप बाद में देखते हैं या लाइव प्रोग्राम को देखते हैं, आप लाइव प्रोग्राम को मन भवन या मशवरा के वेबसाइट पे देख सकते हैं, वेब पेज पे देख सकते हैं, या फिर आप इसके वेबसाइट पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया के पेज पे देख सकते हैं. जो वहाँ देख रहे हैं उनको भी थैंक यू. सो मैं सभी अंत में सभी को धन्यवाद देता हूँ. सभी मेहमानों को मेजबानी करने के लिए धन्यवाद. थैंक यू अब्दुल जी, थैंक यू प्रबल जी, आपको हार्दिक धन्यवाद. और गुप्ता सर, आपकी बहुत बहुत सराहना करते हैं हम लोग. और जितने भी हमने देखा है कि जो हमारे बोर्ड मेंबर्स रहते हैं, इसमें आज भी मैंने देखा कि बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स थे हमारे, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, एडवाइजरी मेंबर्स थे. सो थैंक यू ऑल. आप सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, गहरा आभार व्यक्त करता हूँ. और मैं अपने स्टाफ के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करता हूँ और खुश हूँ कि आप सबने मिलके मशवरा के इस अंक को बहुत ही सफलता दिलाई है. तो अंत में सभी सम्माननीय मेहमान, प्रतिभागी, आप सभी की सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सो थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, नमस्कार. थैंक यू सर. थैंक यू अब्दुल जी, थैंक यू प्रबल जी, थैंक यू राकेश.